Good morning, CA Dr. Girish Ahuja sir, CA CV Chitre sir, CA Abhishek Damne, Chairman Pune, and all the respected members. Welcome all of you today's session on budget. Today we have with us a very eminent speaker to whom everybody like to hear, CA Dr. Girish Ahuja sir. I welcome on behalf of Pune branch all of you. Now I request Abhishek Damne, Chairman Pune, for give welcome address. Over to Abhishek. Thank you, Samir. Respected speaker, CA Dr. Girish Ahuja sir, who is also known as Guru to all the chartered accountants. Respected Central Council member, CA CV Chitrai sir, my Vice Chairman, CA Samir Ladda, dear all members, a very warm good morning to all of you. Today we are here to have learnings from CA Dr. Girish Ahuja sir on budget. Last year also we had him on the forum of Pune ICI. He was kind enough to grace the occasion. Today, this year also, at a very short notice, Samir had called Dr. Girish Ahuja sir, and he accepted. So thank you so much, sir, for accepting our invitation. We have one of its kind union budget. There are a lot of amendments for chartered accountants also. So we need to learn and think also the provisions. And I would request CA Dr. Girish Ahuja sir to guide young chartered accountants in line with the view of the government about the extension of tax audit limit from 5 crores to 10 crores. Young chartered accountants like us, what they should do also, should they depend on tax audit? Other than that, there are numerous provisions which has gone under change, which has undergone a change. So I'm sure Dr. Girish Ahuja would guide us, and he would make those provisions more clearer to us, and we would be consulting our clients based on that. So with this, I wish you all a very happy learning. I would recognize efforts of Samir for immediately calling Girish Ahuja sir and getting in touch with him and coordinating the session. So with this, I hand it over to Samir. Thank you, Abhishek, for your all welcome speech. We have with us our Central Council member from Pune, CA Vijay sir, who is also known in experts in direct gas with other subjects also. I request Central Council member Chitra sir to please give your opening remarks for the session. Over to you, Chitra sir. Yes, thank you, Samir. And I welcome Girish Ahuja ji for agreeing to enlighten members from Pune. Actually, as far as the country is concerned, the budget is presented in 4 parts. One is the speech from Finance Minister, another is Finance Bill, notes on clauses, and memorandum explaining the bill. But for the professionals and particularly chartered accountants, unless the 5th part is there, the budget is not complete. And that 5th part is presentation on our analysis of budget by CA Dr. Girish Ahuja. And we are really fortunate that Ahuja ji is going to explain us this budget. Sir, there are two intricate provisions which, when discussed with professionals, we find need more elucidation at your end. One is relating to reorganization or partnership firms, particularly Section 45, Sections 4 and 4A, which have been completely revamped. So we would like to have elucidation on those grounds. And also Section 43CA and Section 56. Section 43CA talks about house property, residential house property, and some other qualifications are there, first time buyer, 2 crore rupees, etc. But as far as Section 56 is concerned, at the buyer's end, it refers only to property. So whether we have to take definition of property or also to other qualifications as well. So from this perspective, we will be happy to have your elucidation. And Abhishek explained that young members would expect words of advice, but I would say that all members would expect words of advice from you. And once again, I thank you for accepting our invitation and agreeing to address our branch. This time, because of pandemic, it has been virtual hearing.
But last year we definitely had a physical hearing, and in future also we would expect you physically present at Pune, so that maybe post this lecture also we can interact with you, members can interact with you. Thank you, sir. Thank you, Chidre sir. Just now, before we started, Ahuja sir promised that whenever the pandemic situation will come normal, he will definitely come to Pune physically. It's my great pleasure to introduce say Dr. Girish Ahuja sir to all the members. By qualification is MCom, Chartered Accountant and PhD. He is practicing Chartered Accountant mainly in field of direct taxes. He is nominated by Government of India as a member of Task Force for redrafting the Income Tax Act and New Income Law, and the report thereto was submitted to the Finance Minister on 18 August 2019. Nominated by Government of India as an independent director to the Central Board of Direct Tax of State Bank of India for 2 terms. Nominated by the government with the approval of Supreme Court to the Board of Directors of United Limited. Appointed as independent director on the board of Ruchi Soya Industries Limited. Appointed as independent director of other 3 limited companies. Nominated member of the High Powered Committee constituted by Government of India under the chairmanship of Justice A.P. Shah, Chairman Law Commission, to look into issue of applicability of MAT provisions and in the case of foreign companies and any other issue relating to applicability of direct tax provisions which may be referred to the government CBDT from time to time. Author of over 25 books of direct taxation both for students and professionals, including concise commentary on direct taxes and many others. Consultant on tax matters to various industries and non-profit making organizations. Delivered more than 3,200 lectures on various topics of direct tax governed by ICAI, ICSI, Chamber of Commerce, Management Institutes, and various other organizations. President of SRCC Aluminum Association for over 20 years. I request now Dr. Dr. Girish Ahuja sir, please take the charge of session. Over to you, Ahuja sir. Good morning to one and all. Central Council member and very good friend of mine, C.V. Chitaleji. Chairman of the Pune branch, Abhishek Damine ji. Vice Chairman sitting in front of me, who has done a lot of efforts, of course, Samir Ladda ji. Ladies and gentlemen, let me tell you, sir, this is very technical budget. And one has to understand completely, and you have to give patient hearing. Then only you will understand what kind of a budget is there. Because for our practicing chartered accountant and others also for employment, many things are there. The first thing now I'm starting. There is section 2 clause 11 in the Income Tax Act which talks about the definition of block of asset. There is section 32(1) which talks about on which kind of asset you are allowed depreciation. There is section 50 talking about short-term capital gain on the sale of depreciable asset. Section 55 talks about what you call cost of acquisition and all that. Now, what I am trying to explain. You know, there was a Supreme Court judgment, Swim Securities Limited. In that judgment, it was held that if you have acquired goodwill and you have paid price for that, it will be treated as a depreciable asset. And since it is treated as a depreciable asset, you will be allowed depreciation. Although, if you look up the definition, nowhere the mention of goodwill of a business or anything was there. Kya tha jara suniye. Section 211 talked about meaning of block of asset. Kya kehta tha? Block of asset is a group of asset forming part of a class of asset comprising of tangible asset being building, machinery, furniture and plant, and intangible asset being technical know-how, patents, copyrights, licenses, trademark, franchises, or any other business or commercial right or similar nature. Abhishek Sheikh ji, did you notice in the intangible asset, nowhere the word goodwill of a business is there, although goodwill of a business is an intangible asset. But this Supreme Court judgment said that any other business or commercial right or similar nature, it will fall there and you will allow depreciation there. ये कई साल हो गए ये आए हुए.
But now what have they done? That intangible asset जो डाला था block में भी और definition में भी क्या करा? Intangible asset means, ध्यान से सुनिए, same है, technical know-how, patents, copyrights, trademark, licenses, franchises, any other business, commercial right of similar nature, but excluding goodwill of a business, not being goodwill of a business or profession. वहां ऐड कर दिया not being goodwill of a business or profession. सीधा कह दिया इंटेंजिबल एसेट में गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन हम नहीं देंगे, ब्लॉक में नहीं डालेंगे. क्लियर हुआ? Then they came to 32(1). Depreciation is allowed on which asset? One was tangible asset, building, machinery, furniture and plant. Another was intangible asset. वहां भी वही definition है. There also they have written not being goodwill of a business or profession. Meaning thereby you will not be allowed depreciation on goodwill of a business or profession. बहुत नुकसान हुआ सर. Corporated houses go for amalgamation, demerger, takeover, slum sale. You know, when you have a slum sale or takeover, you don't pay only the price, market value of the assets. You also have to pay a lot of goodwill amount. Swim Securities may also, he had purchased a hotel, and he had to pay a huge amount as goodwill of that hotel. And that goodwill is a cost to you. The goodwill earlier that allowed as depreciation. Suppose you have paid 5 crore rupees goodwill, it is allowed as depreciation, falling in the block of 25%, and you get depreciation on written down value method. But now what will happen? Any goodwill, Samirji, any goodwill which you acquire by paying the price, it will be a fictitious asset standing in the balance sheet, because you are not going to get any deduction on account of depreciation. That will remain in your balance sheet. Yes, in a future, whenever you want to sell that goodwill, then there will be a capital gain. And if you don't want to sell that goodwill, it remain in the balance sheet and you will not get any deduction. Earlier, you were at least getting a deduction of goodwill as a depreciable method. Very rarely you sell the business and you give it to. But if you, at that time you used to sell, there was a short-term capital gain because it was forming part of the block of asset. But now what will happen? So expression 3 also definition intangible asset change. Now they say goodwill is no doubt an asset. It is an asset. But they have talked about section 55, cost of acquisition and cost of improvement. Dekhiye Samir ji, there is no improvement in the cost of improvement of goodwill is always nil. Cost of improvement is goodwill is always nil. And goodwill can be self-generated. आपको मालूम है ये 7 types of asset आया था. There was a judgment of B.C. Srinivasa Shetty saying that if it is a self-generated asset, you cannot determine the cost, and since you cannot determine the cost, it will not be liable to capital gain. Then they had made an amendment, said goodwill of a business, patent, copyright, brand name, trademark, or any other business or commercial right, or right to manufacture any goods, or tenancy right, or loom hours. In this case, even if they are self-generated, the cost will be nil. Cost will be nil. Since now they have said the cost is nil, means if you transfer that, there is going to be capital gain of the whole amount. Are you getting my point? Even a tenancy right. Suppose you have taken an office for on rent, but after a few years, the landlord tells you to vacate that house. I will give you 10 lakh. What was the cost of tenancy right? Nil. Now you give it to him and take 10 lakh. The entire amount is long-term capital gain if it is for a period more than 3 years. ऐसा goodwill of business का भी होता था. That goodwill of business self-generated, cost is nil, no question of depreciation. But goodwill, if you purchased, the cost you paid the price, but you were entitled to depreciation. In future, you will not be entitled to depreciation. And let me tell you, you are not allowed to assume market value as on 1st April 2001 in case of goodwill or any other. They are not. If it is cost in nil, it will remain nil. Market value are not allowed. Correct, sir?
आइए, अभी एक लूप होल था समीर जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अभिषेक जी, बड़ा इंपॉर्टेंट लूप होल बताता हूं। वहां लिखा था गुडविल ऑफ ए बिजनेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू प्रोड्यूस, ब्ला ब्ला ब्ला। वहां वर्ड क्या था सर समीर जी? गुडविल ऑफ ए बिजनेस, गुडविल ऑफ ए बिजनेस। Goodwill of a profession was not mentioned there. It was not mentioned there. So that was an area of tax planning. For example, I am carrying on a profession. If I sell goodwill to you of my profession, since cost was indeterminate, the law said BC Shriram Shakti, there will be no capital gain to me. Although goodwill of a business there is. And then if you buy that goodwill, you will be allowed depreciation. But now what have they done? They have included goodwill of a business or profession also. Meaning thereby that profession also, if the goodwill is there and you want to sell it, the cost will be zero. And there will be whole amount of capital gain. And आगे क्या कहा? अगर आपने capital gain कमाया, you will pay tax. But the buyer of that goodwill of a profession now will not be eligible for any depreciation. उसको depreciation तो मिलेगा ही नहीं. अब किसी ने पूछा ऑलरेडी जो हमने गुडविल ले रखा है उसका क्या होगा? उसको तो we were charging depreciation on that. And if I sell that, so what will happen? He said, wait, your cost will be the purchase price of the goodwill minus the depreciation allowed till date. So we'll have to calculate it and you have to take it out of the block. And they will tell you the method, how you have to do it. So, sir, it is clear, Samir ji? Section 2, clause 11, read with section 32(1), read with explanation 3, read with section 50, and read with section 55. ये करा है. मैं चाहूंगा कि एक आध आदमी मेरे पास और आ जाए, मैं उनका नाम लेता रहूंगा, सिर्फ समीर जी को तंग नहीं करूंगा, क्योंकि अभिषेक जी थोड़ा चले गए. मुझे I can't talk to the wall. I just want somebody in front of me so that Samir ji आगे सर मैं इधर no problem. I know you were there, but you had video off कर दिया था. So don't do the video off so I could see you. So I see the reaction, faces, reaction. Whether or when I asked you, did you understand? You can shake your head. At least I come to know that it is you are following. And I want one or two more also to come. Mr. Kulkarni is also there. Mr. है कि मैंने देखा नहीं है. कुलकर्णी वो भी आ जाए सामने, अच्छा रहेगा. कमिंग ये आ गए कुलकर्णी जी आ गई. तो मैंने देखा नाम, मुझे लग रहा था अर्चना, मैंने कहा कि मैंने मिस्टर कैसे कह दिया. सॉरी मैम. coming back. Now next thing, wonderful change. Try to understand what exactly is this. You know, insurance company, life insurance. You take an insurance, समीर जी, फिर गायब हो गए. सर सामने देखे रहिए ना, मुझे अच्छा लगता है आपकी शक्ल देखकर बात होती है. समीर जी देखिए, इंश्योरेंस हैज नेवर बीन ए कैपिटल एसेट. इंश्योरेंस तो क्या है? मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है बोनस के साथ. इट कांट बी कॉल्ड कैपिटल एसेट. इट इज नॉट ए कैपिटल गेन. इवन फिक्स्ड डिपॉजिट in the bank, is it a capital asset? No, it is an asset, but there is no question of capital gain on that because you charge interest on that. Now rupee money is not a capital asset where capital gain is available. लेकिन रुकिए, अब एक नई चीज आई है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. वो नहीं है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. That was a different thing. It is unit linked insurance policy, where there are two components. One component is of investment and the another component is insurance. Investment and insurance. You get some value addition in investment and there is an insurance also. This scheme has started only a few years back. Now what has happened? Try to understand. There is section 10 clause 10D, which says when you receive the money from insurance company at the time of maturity, the income is totally exempt. The amount received is totally exempt, including the bonus thereof. It is totally exempt under 1010D. Yes, if it is scheme and insurance policy, it is taxable. Three provisos are there. अब देखिए क्या किया है.
In 1010D, they have inserted 4 proviso. Proviso 4th, proviso 5th, proviso 6th, proviso 7th. अरे पहले ही प्रोवाइजो ही पढ़ते रहते हैं, 3 प्रोवाइजो पहले थे, 4 और पढ़ लीजिए 1010D में। मैडम सेक्शन 1023 से में 20 प्रोवाइजो हैं, 20 प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, और फिर डालते ही रहते हैं ऑल्सो ऑल्सो ऑल्सो। जैसे आप करते हैं, आई थैंक सच एंड सच, आई ऑल्सो थैंक सच एंड सच, आई ऑल्सो 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 करते ही रहते हैं, यहां पर भी वही है। अब 4th प्रोवाइजो सुनिए समीर जी क्या है। 4th proviso says the provision of section 1010D shall not apply. What does it mean? Exemption will not be given to you if you have taken a unit linked insurance policy on or after 1st of February 2021. ये अभी 1st February. If you take that policy of ULIP on or after 1st of February 21, and if you have made the payment of premium in any of the previous year before maturity of a sum exceeding 2,50,000, any of the previous year, then exemption under 1010D will not be allowed. Condition: you took a policy on or after 1st February 21. I'm not talking about old policy taken. And you have made a premium in any of the previous year, not on any of the previous year. How much? Exceeding 2,50,000. Then in that case, 1010D will not be applicable. Means exemption will not be allowed to you. Then proviso 5th says कि हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्लानिंग करवा देंगे और कह देंगे let us take 2 policy and pay premium of 2 lakh each in 2 policy, 2 lakh each. तो उन्होंने क्या किया है? Please note in proviso 5th that if you have taken more than 1 policy, then the aggregate amount should not exceed 2,50,000. Aggregate premium in both the policy together should not exceed. Then proviso 6th क्या कहता है? Sir, look here, but unfortunately, if there is a death of the assessee, जिसको insured किया था, then the amount is received by legal representative or legal heirs, वो exempt होगा. That will be exempt under 1010D. If he receives the amount himself, it is taxable. But if he does not receive amount himself because unfortunately he's died, his legal heir had taken the money, that will be fully exempt as per proviso 6. And proviso 7th में लिख दिया, if there is any difficulty, the government will come out with the guidelines and those guidelines will be binding on every person. ये करके 4 प्रोवाइजो डाले. तो समीर जी, अब ये पैसा दिया था आपने, वो क्या माना जाएगा? उसने कह दिया सेक्शन 2 क्लॉज 14 इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. अभी तक कैपिटल एसेट में 2 आती थी. कैपिटल एसेट मींस ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, और बी वो पीछे हमने डलवाया था क्या, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. ये क्यों डलवाया था? You know, foreign institutional investor keep on buying and selling shares. Keep on buying and selling. Day in, day out, they sell. So people can take that it is trading. And since it is a trading of business, then it will be called business income and taxable under profit or gain from business operation. So law ने उनको attract करने के लिए कह दिया, you may sell every day, no problem. But we will always treat it capital asset. तो capital asset होने से क्या होता है फायदा? एक तो इंडेक्सेशन बेनिफिट हो सकता है. कैपिटल एसेट का फायदा क्या है? टैक्स रेट कम है. एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं तो बिजनेस इनकम होता तो टैक्स रेट पूरा लगता, फॉरेन को 40% भी लग सकता था, लेकिन उन्हें ये एडवांटेज. अब क्लॉज सी डालती है. इन क्लॉज सी देयर से इट विल आल्सो इंक्लूड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी व्हिच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D. आ गया ना? वो जो अगर तो वहां एग्जेम्प्ट है, लेस देन 2,50,000 है, हम यहां नहीं लेंगे. कौन सी वाली पॉलिसी लेंगे? दोज पॉलिसी दोज वेयर यू हैव मेड ए प्रीमियम ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2,50,000 इन एनी प्रीवियस ईयर. उसको हम अब क्या मानेंगे समीर जी? कैपिटल एसेट.
कैपिटल एसेट। अब जब कैपिटल एसेट हुआ तो फिर कैपिटल गेन भी होगा ऑब्वियसली। तो इन्होंने एक सेक्शन डाल दिया, सेक्शन 45(1)(b, नया सेक्शन डाला। रोज ही नए सेक्शन पढ़ते रहते हैं, थक गए हैं, बढ़ते ही रह रहे। पहले 45(1) था, देन 45(1)(a आया, 45(2) है, 45(3) है, 45(4) is there, 45(5) is there, and then new section was inserted, 45(5)(a। वो तो रोज ही होता रहता है। तो लीजिए 45(1)(b डाला। अब देखिए सेक्शन 45(1) में लिखा है कैपिटल गेन अराइजेस इन द ईयर ट्रांसफर टुक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टुक प्लेस, यही है ना ट्रांसफर। अब देखिए इंश्योरेंस के केस में आप क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं ट्रांसफर कर रहे, आप तो पैसा रिसीव करेंगे। हम कोई पॉलिसी ट्रांसफर थोड़ी करते हैं, वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो इन्होंने अब इसलिए यह डाला, not withstanding anything contained under 45(1), not with this. If you have taken a ULIP policy to which proviso 4th and proviso 5th are applicable, that means you have paid more than 2,50,000, then when you receive the amount from the insurance company, मिलेगा ना जब maturity होगी, at the time of maturity, this amount shall be subject to the provisions of capital gain. तब क्या लगेगा? Capital gain. Which year? In the previous year in which the amount is received from insurance company. जब मिलेगा तब लगेगा, लेकिन रिसीव करेंगे। ओके सर, अब ध्यान से सुनिए। कंसीडरेशन प्राइस तो आपको पता लग गया। What is the consideration price? Amount received from insurance company. What is your cost? बड़ा सिंपल है। Whatever premium you have paid till date, whatever premium, less than 250 or more, and more to, at least one is more than 250. Whatever your premium paid, that is your cost. That is your cost of acquisition of that policy. The difference between two should be capital gain. Then she can ask me, Madam Kulkarni, sir, what about it is a long term, if it is more than 3 years, it should be indexed, because हम तो कहते हैं indexation allowed है, तो it should be indexed. नहीं मैम, इन्होंने क्या किया है? There is section 112A. Remember, in 12A, there is listed security shares you are selling through recognized stock exchange, unit of equity oriented fund. There also it is 10% and indexation is not allowed there. And you are liable to pay tax at 10%. Along with the unit of equity oriented fund, they have also inserted unit insurance policy to which proviso 4 and proviso 5 is applicable. Meaning thereby, इस पर 10% tax लगेगा. If you have received 20 lakh, you have paid 14 lakh, capital gain will be 6 lakh, and you are liable to pay 10% of an amount exceeding, क्योंकि 112 में लिखा है, exceeding 1 lakh. तो ये आपको क्लियर कर दिया कि अब जो हो रहा है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112A लगेगा, बट इफ इट हैपेंस टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो 111A लगेगा, 111A लगेगा. सर क्लियर सर? सो माय पॉइंट इज सेक्शन 214 to bring ULIP in capital asset, correct? Section 1010D to tell you that if you pay more than 250, you are out of 1010D, you will become taxable. Section 45B telling you, look here, it will be capital gain. And section 112 here, please note, no indexation, but you are liable to pay tax at the rate of 10%. Clear, Sameer ji? और क्लियर हो गया? आगे तो वापस आ गए हमारे अभिषेक जी, तो क्लियर हो गया ना सर? अब आगे जा रहा हूं सर. सेक्शन 2 क्लॉज 19AA gives you the definition of demerger. You know what is demerger? Transfer of an undertaking or a division of an undertaking to another company, to which is called as resulting company, and certain conditions are satisfied, it will not be regarded as it will be a demerger. Or 47 में लिखा है demerger is not regarded as transfer and therefore there is no capital gain. ये तो पता ही है ना आपको, resulting company शेयर दे देगी शेयर होल्डर ऑफ demerged कंपनी को और वो कैपिटल गेन नहीं माना जाता है ना जी अभिषेक जी. डीमर्जर इज नॉट ए ट्रांसफर. अब देखिए गवर्नमेंट ने ये नई पॉलिसी निकाली, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी. बजट में सुना होगा
डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। उसमें से एक ये भी पॉलिसी बताई कि जो बैंक है, बैंकों के पास लॉट ऑफ एनपीए है, अब तो बैंक ऑडिट करते होंगे, लॉट ऑफ एनपीए। अब सारा दिन बैंक का काम लगता है टू रिकवरी ऑफ एनपीए और टू रिकॉर्ड दैट रिकवरी करो। अब गवर्नमेंट ने एक चीज सोची है, दैट वी विल ट्रांसफर दीज एनपीएस as a loan book to another public sector company, and that bad bank, वो bad bank हो जाएगा, that bad bank will do the process of recovering that money। हो सकता है उसमें लॉस हो, कुछ हो, लेकिन कौन करेगा? वो बैंक करेगा। हम यहां से हटाकर दूसरे बैंक को दे रहे। जब ये ट्रांसफर होगा तो कहेंगे इसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा रुको, डीमर्ज की डेफिनेशन में एक मॉडिफिकेशन की। क्या मॉडिफिकेशन है अभिषेक जी? रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप ऑफ ए पब्लिक सेक्टर कंपनी by transferring the asset to another public sector company will also be regarded as demerger। समझ रहे क्या किया है कि जो भी एसेट हम यहां से ट्रांसफर कर देंगे, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनी, to which you are transferring to another public sector company, वो बना, तो हम इसको डीमर्जर कहेंगे। यू विल कॉल इट एज डीमर्जर। उसके प्रोसीजर बताएंगे, वही शेयर होल्डर, उसको वो शेयर मिल जाएंगे उस कंपनी के। आपको तो मिलेंगे ना, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर तो मिलेंगे ना, जो डीमर्जर, आप स्टेट बैंक के शेयर होल्डर हो। अब शेयर होल्डर ने लोन बुक वहां ट्रांसफर कर दी, कौन सी वाली? एनपीए की करी ना सर। हमारे 5 लाख करोड़ के स्टेट बैंक के हैं, तो है ना, वो आपने उधर ट्रांसफर कर दी। वो कहता है ये डीमर्जर नहीं होगा, लेकिन वो जो रिजल्टिंग कंपनी है वो आपको शेयर तो देगी ना, देगी। लेकिन अब इसमें एक और कह दिया, 72A सेक्शन डाला। 72A में होता है लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड इफ देयर इज ए डीमर्जर। और तो उन्होंने कहा अगर डीमर्जर हुआ तो जो नई कंपनी बनेगी, इट विल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 8 years। So section 2 clause 19AA read with section 72A। clear sir? clear? very good। सबने शेक हैंड कर दिया, अच्छे आपने सिर हिला दिया तीनों ने, मुझे खुशी हुई। आगे इसलिए मुझे चाहिए आप लोग आप सामने। आगे चलिए सर, स्लम सेल है, आपको पता है स्लम सेल का 50B लगता है, पर डेफिनेशन ऑफ स्लम सेल इज गिवन इन सेक्शन 2 clause 42C। आप कहेंगे वो क्या लिखा था? Slum sale is a transfer or a undertaking or a division of undertaking as a result of sale. Please note the word as a result of sale for a lump sum consideration where the price is not assigned to each and every asset. The word क्या है? Transfer of undertaking or a division of an undertaking as a result of sale. As a result of sale। समझ रहे? सेल। अब ये लीगल लिमिनरीज है, उन्होंने कहा जी वर्ड सेल लिखा है, और ट्रांसफर की डेफिनेशन में होता है सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन। मीनिंग देयर बाय ये तो सिर्फ सेल है तो स्लम सेल मानी जाएगी, और सेल का मतलब होता है मॉनेटरी कंसिडरेशन। व्हाट अबाउट एक्सचेंज? कहता वो नहीं मानी जाएगी। लीजिए अब अमेंडमेंट कर दी, transfer of an undertaking or a division undertaking by any means। transfer by any means, even exchange which is also a transfer। तो इसलिए कई बार क्या होता है, आपने स्लम सेल करी, इंस्टेड ऑफ मनी यू आर टेकिंग शेयर्स, और इंस्टेड यू आर टेकिंग समथिंग इन काइंड। एक्सचेंज है ना, तो पहले ये वो कह रहे थे कि भाई नहीं सेल ही होना है, तो सेल में तो मॉनेटरी कंसिडरेशन होनी है, अदरवाइज तो स्लम सेल मानी नहीं जाएगी। अब क्लियर हो गया? बाई एनी मीन्स। आइए आगे चलते हैं सर। मैंने लास्ट ईयर जब हम बना रहे थे इनकम टैक्स एक्ट तो नहीं कहूंगा, लॉ, ड्राफ्ट इनकम टैक्स लॉ, तो वहां पर हमारा लॉट ऑफ डिस्कशन हुआ करता था बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड वी पीपल। हम तो 2 ही थे, 3, और बाकी डिपार्टमेंट के 8-10 लोग आते थे, और हम ये कह रहे थे जब लॉ बनाए दैट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड लॉ एंड इट शुड नॉट हैव एनी प्रोवाइजो एट ऑल। देखिए हमने जो लॉ बनाया इसमें एक भी प्रोवाइजो नहीं है, और यहाँ प्रोवाइजो ही प्रोवाइजो डाल रहे हैं, लेकिन वो तो आहिस्ता सा आता रहेगा, वो बात अलग है। अब आगे सुनिए क्या हुआ।
So we were finding out the loophole in the law. They were also telling us, and they were giving, we wanted some benefit to be given also. तो मैंने कहा मेरे पास एक ऐसा टूल है जो लूप होल है, जितना उसमें लॉस होता है गवर्नमेंट को वो आपको मैं बता दूंगा, पर गिव अस सच एंड सच बेनिफिट। उन्होंने वो बेनिफिट तो दिया नहीं, लेकिन मेरे वाला प्रोविजन पकड़कर नेक्स्ट ईयर बजट में डाल दिया था। जरा सुनिए क्या है। जरा सुनना है समीर जी, सुनने वाला है। वहां एक लॉ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड is exempt up to 12% of employee salary। है ना जी 12%, कितना सिंपल है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ CFO, CEO, बड़े बड़े चेयरमैन, MDs of the corporate houses are taking fat amount of salary, fat amount of salary। वह 10 करोड़ भी है, 14, चलो मैं सिंपल वाला लेता हूं, 5 करोड़ सैलरी इन अ ईयर। तो क्या अरेंजमेंट होता था, that employer will contribute 12% of the salary to the provident fund। How much is the 12% of 5 crore? 60 lakh। And that 60 lakh will be exempt in the hands of the employee। एक पैसा भी खर्च नहीं किया, 60 लाख माफ हो गया। And that 60 lakh will be invested in the provident fund and every year it will be invested। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी totally exempt होगा। And after the retirement, they'll get huge amount of money, which will be totally tax free। था ना ये totally tax free। कितना लूप होल था। जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या प्लानिंग दिमाग लगाया और करोड़ों रुपया टैक्स फ्री ले गए। मैंने बताया, और मेरे सारे लोग मुझ कॉर्पोरेट हाउसेस वाले मेरे से नाराज हैं। CFO, CEO, डायरेक्टर्स, और इवन जहां 2-3 कंपनियों में जहां ज्यादा थे उन सैलरी, उन बड़ी कंपनियों में, वहां भी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था। उसका CFO वो मेरा स्टूडेंट भी था, एंड ही वाज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 5 करोड़। CEO वाज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 6 करोड़। कह दिया जी मरवा दिया आपने। क्या हुआ, वो 60 लाख हर साल मेरा कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर करता था। आई वाज नॉट सपोज्ड टू पे एनी टैक्स एंड द इंटरेस्ट वाज आल्सो getting it accumulated and a huge amount I was taking a benefit। क्योंकि मुझे पैसे चाहिए नहीं, 5 करोड़ मेरे पास ऑलरेडी है, इसको तो मैंने इन्वेस्टमेंट में ही रखना था, तो मैंने तो सेफ इन्वेस्टमेंट रख दिया प्रोविडेंट फंड में। लॉ चेंज हुआ लास्ट ईयर इन फाइनेंस एक्ट 20 that employer contribution to the provident fund shall be exempt to the extent of 12% of salary। not only provident fund, superannuation fund, pension fund shall be exempt to the maximum extent of 12% of salary or rupees 7,50,000, whichever is less। only 750 मर गया बेचारा, क्योंकि 7,50,000 exempt हुआ, तो बैलेंस 52,50,000 was treated as perquisite taxable in his hand। वो 52,50,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। पैसा तो आया नहीं, टैक्स भी देना पड़ेगा। और उसके बाद लिखा है नेक्स्ट लाइन में, the interest which accrues on that 52,50,000 shall also become taxable। इतनी गालियां पड़ी मुझे, इतने लोगों ने मुझे अब्यूज किया, सर ये मरवा दिया। मैंने कहा मैंने तो थोड़े लोगों को कहा था, और लेकिन पर्पस मेरा एक बेनिफिट देने का था आपको, वो नहीं माने, मैं क्या करूं। हाँ, जो अभी तक 62,50,000 सैलरी लेते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 62,50,000 ईयर 12% ऑफ दैट इज 7,50,000। मतलब 5 लाख वाले को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो 5 लाख से ऊपर सैलरी लेते थे और वो ये करते थे, सब मारे गए। मेरे को CFO सारे रोते हैं, और मेरे ही स्टूडेंट है आधे से ज्यादा। वो कहते हैं सर मरवा दिया आपने अपने स्टूडेंट्स को। मैंने कहा भैया मैंने नहीं मरवाया। अब देखो क्या हुआ, अब तो मैंने कुछ नहीं कहा, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक नई चीज निकाली है। इतने स्टोरी सुनानी पड़ी क्योंकि मुझे सेक्शन 10, 11 और 12 सुनाना है आपको। स्टोरी के बगैर समझ में नहीं आता। लॉ सुनिए क्या है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज अलाउड एज डिडक्शन। मैम अलाउड होता है, मैडम कुलकर्णी अलाउड है कितना? 80C में मैक्सिमम 1,50,000। लेकिन हमारे एम्प्लॉय के पास पैसा बहुत है, वो क्या करते थे, 20 लाख रुपया डाल दिया प्रोविडेंट फंड में, 40 लाख रुपया डाल दिया। वो कहते हैं आपको क्या फायदा हुआ?
कोई बात नहीं, डिडक्शन 150 है, लेकिन जो बैलेंस पैसा है उसका इंटरेस्ट तो माफ है ना, टैक्स फ्री इंटरेस्ट, और वो कंपाउंड होता रहेगा। मुझे तो पैसे चाहिए नहीं थे, मैंने तो बैंक में ही रखने थे, तो लाइए मैं तो प्रोविडेंट फंड में सेफ इन्वेस्टमेंट हो गई। इंटरेस्ट पूरा 8% मोर देन एफडी आ रहा है, पहले तो 10%, 9%, 12% तक था, और मुझे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जब पैसा आएगा मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। देखा, ये भी प्लानिंग थी, इस प्लानिंग को भी फेल कर दिया। अब ये नया डाल दिया सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12) में प्रोवाइजो डाल दिया। क्या डाला? प्रोवाइडेड दैट इफ एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स more than 2,50,000 in any previous year to the provident fund, ये सिर्फ provident fund लिखा है, to the provident fund, क्या होगा? Although deduction is 1,50,000, but any interest which accrues on an amount above 2,50,000 shall be taxable on accrual basis. भाई साहब ने 20 लाख जमा कराए थे, इंटरेस्ट माफ था, अब 2,50,000 तो एग्जेम्प्ट होगा, और बैलेंस 17,50,000 में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, दे विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट, शैल बिकम टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस। अब इसमें मुझे गालियां मत देना, मैंने नहीं कराया, ये उनके दिमाग की वजह, कई लोग करते थे। इंप्लॉय की बात कर रहा हूं मैं, पीपीएफ की बात नहीं कर रहा, पीपीएफ तो है 1,50,000, so there is not a problem. The problem is employee contribution to statutory provident fund or recognized provident fund. If it exceeds 2,50,000, they have told you, look here, any interest which is credited on and above, on the amount above 50,000 shall become taxable on accrual basis. ये भी प्लानिंग, एम्प्लॉयर वाला भी गया, एम्प्लॉय वाला भी गया, और सब पे टैक्स लग गया। अमीर आदमियों को तो छोड़ ही नहीं रहे किसी तरह। आइए अब चलते हैं सेक्शन, समीर जी बड़ा अच्छा अमेंडमेंट आई है, कुछ तो उन्होंने खुद किए और कुछ मैंने करवाई क्लैरिफिकेशन के लिए। सेक्शन 1023C 3IAD एंड 3IAE, ये इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा। कहते हैं ये सब क्लॉज किसको याद है, सब क्लॉज किसको याद है? मुझे पता आपको पता है वो क्या है, लेकिन आपको क्लॉज और सब क्लॉज याद नहीं है, बट यू नो इट, आई नो ऑल ऑफ यू नो इट। मैं तो इंप्रेशन तो बनाना पड़ेगा ना, मुझे क्लॉज भी आती है, सब क्लॉज भी आते हैं, और सेक्शन भी आता है, अदरवाइज आपको मालूम है, मैं बता रहा हूं। व्हाट इज 1023 3ID? Income of a university or educational institution, but not for making profit, but for imparting education, shall be exempt if the gross received do not exceed the limit, और लिमिट लिखी है 1 crore. Income of a hospital or medical institution, ये 3IAE है, not for making any profit but philanthropic purposes, shall be exempt if the gross receipt of that hospital or medical institution do not exceed 1 crore. 1 करोड़ तक अगर रिसीट ज्यादा नहीं है, there is no formality, no condition, no approval required for trust, no audit report of 10BB, no audit report of 10BB, no question of 85-15%, only return is mandatory. रिटर्न मैंडेटरी है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं। अब क्या किया है? This 1 crore has been raised to 5 crore in each case. 5 crore ये किसने कराया समीर जी? ये पॉलिटिशियन नहीं कराया है। हर पॉलिटिशियन के स्कूल कॉलेज हैं, हर पॉलिटिशियन के हैं, छोटे स्कूल छोटे कॉलेज ट्रस्ट बनाकर चला रहे हैं, सोचते हैं वो उनका है तो पब्लिक एट लार्ज का, लेकिन ट्रस्ट तो है ना। अब नो फॉर्मेलिटी टू बी डन इफ द ग्रॉस रिसीट डू नॉट एक्सीड 5 crore. क्या? नो रिक्वायरमेंट ऑफ 85-15, नो रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी केप्ट इन 11(5), no requirement of audit report under 10BB, no requirement of any approval, only requirement is return to be filed. फायदा हो गया ना उनको। लेकिन इनकम टैक्स वाले कह रहे तुम हमें प्रेशर डालते हो, तो हमें भी समझ है। क्या समझ की? नीचे उन्होंने एक प्रोवाइजो डाल दिया, एक्सप्लेनेशन डाल दिया, सॉरी एक्सप्लेनेशन। क्या रुको तुम हमें समझ रहे हो? इफ यू आर रनिंग ओनली स्कूल कॉलेज एटसेट्रा, exemption up to 5 crore. If you are running only hospital medical institution, exemption 5 crore. But if that trust is running both school college
as well as hospital, then the exemption will be in aggregate 5 crore. In aggregate 5 crore. ये नहीं है 5 करोड़ उसका अलग, 5 करोड़ उसका अलग, सिर्फ 5 करोड़ टोटल मिलेगा. समझ में आ गया? एग्रीगेट 5 करोड़, या नीचे एक्सप्लेनेशन में डाल दिया. एक और चीज भी इसमें है, हिडन मीनिंग, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा. पहले क्या था, कुछ जजमेंट्स थी that if you are running 4 school under one trust you are running 4 school and each school gross receipt do not exceed 1 crore, तो कहते थे चारों का 1-1 करोड़ माफ हो जाएगा. वो भी खत्म हो गया. अब एग्रीगेट 5 करोड़ ही रहेगा. सो वो भी फिनिश हो गया. वो जजमेंट भी अब ओवर रूल हो गई. अब आप ये नहीं कह सकते 5 करोड़ ईच स्कूल. नो 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 नो. हाँ, सेपरेटली रन करो ट्रस्ट में, वो अलग बात है. बट अदरवाइज 5 करोड़ इन ईच स्कूल विल नॉट बी देयर. इट विल बी इन एग्रीगेट 5 करोड़. क्लियर है सर? ये सेक्शन 1023C 3IAD 3IAE आया है. अब आएगा. हाँ, 1 मिनट सर. Yes, please, coming back. अब जब मैंने जो क्लैरिफिकेशन दिलवाई वो बहुत अच्छी है, जरा ध्यान से सुनना. You know that in section 11(1)(d), voluntary contribution with a specific direction that it will form part of the corpus of trust is fully exempt. It is fully exempt. Last year मैंने 1023C में भी एक एक्सप्लेनेशन डलवा दी थी अंडर प्रोवाइजो 3. पहले 1073 में कॉर्पोरेट डोनेशन माफ नहीं थी, वहां पर भी एग्जेम्प्ट हो गई. ठीक है सर. लेकिन समीर जी, प्रॉब्लम क्या था, इस पे लिखा है कॉर्पोरेट डोनेशन इज एग्जेम्प्ट, बट नोवेयर इट इज रिटन हाउ विल यू इन्वेस्ट दिस कॉर्पोरेट डोनेशन, वेयर विल यू इन्वेस्ट. अब उन्होंने बोल दिया प्रोवाइडेड द सेम इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन ए मोड गिवन अंडर सेक्शन 11(5). You know what is mode under 11(5)? जो ट्रस्ट का काम करते हैं, that should be in a bank or in FDR, notified debentures, notified unit और भी immovable property. बाकी कहीं नहीं रखना. वहां रखेंगे तो हम कॉर्पोरेट डोनेशन को माफ कर देंगे. अब जरा ध्यान से सुनना सर, ये लिसन करना है. कई सुप्रीम कोर्ट की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई. वैसे तो हाई कोर्ट की 12 जजमेंट हमारे फेवर में थी, बट दे वर नॉट एग्रीइंग. देन एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट केम of Subros Foundation, SUBROS, Subros Foundation, जिसमें क्या हुआ मैम क्या हुआ, करंट ईयर की इनकम 2 करोड़ थी, बट दे स्पेंट रुपीज 2 करोड़ 50 लाख ड्यूरिंग द ईयर. मतलब एक्सेस एप्लीकेशन हो गई. अब बोर्ड ने कहा सर ये एक्सेस एप्लीकेशन हुई है, वी शुड बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड दिस एक्सेस एप्लीकेशन to claim as a application of the subsequent years. मतलब 50 कर दिया है ना, तो अगले साल जो इनकम आएगी उसको हम कहेंगे ये 50 लाख वहां हमने अप्लाई कर दिया. इन्होंने अमेंडमेंट कर दी. देखिए सुनिए, कैरी फॉरवर्ड हम अलाउ नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू इट. मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी ओवर रूल कर दिया. लेकिन मैंने सजेशन दी थी, वो मेरी सजेशन मान ली. कहते रुको, घबराओ नहीं, रुकिए प्लीज वेट. We will not allow you to carry forward, but wait. देखिए, corpus donation is lying in 11(5). ठीक है, 11(5). और आपके पास कुछ फंड होंगे, वो वाले जो 15% वाले हैं, जो आपने accumulate किए हुए 15%. वो कहता रुकिए. Suppose you have spent during the year 2 crore 50 lakh. Receipt during the year is 2 crore. Excess application 50 lakh. कहीं से तो लाए होंगे. हाँ जी. तो if you have taken the money from the corpus fund, that 50 lakh is taken from corpus fund. आपके 11(5) में पढ़ा था, you took out the money and spent that money. वो कहता है this will not be treated as application. घबराना नहीं, इस साल की एप्लीकेशन ही मानेंगे. आपने 50 लाख कॉर्पस से लगा दिया, 2 करोड़ करंट इनकम से लगाया, but we will not call it as application of the current year. घबराइए नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में if you refund that money out of the current income and give it back to the corpus fund, तो हम उस साल की एप्लीकेशन मान लेंगे. एक्सेस एप्लीकेशन अलाउ हो गए ना मैम. अगर वो 50 लाख आपने
कॉर्पस फंड से लगाया था, if you have used it, this year it is not application of 50 lakh. Next year you received certain income, and out of that income 30 lakh you paid back, reinvested in the corpus. आपने कॉर्पस को रीफिल कर दिया, तो हम 30 लाख उस साल की एप्लीकेशन मानेंगे. उससे अगले साल 20 लाख भी वापस कर दिया, तो कॉर्पस को रीफिल कर दिया, हम उसका एप्लीकेशन मान लेंगे. क्या बुरा किया? कॉर्पस फंड से यूज करेंगे, तो कॉर्पस से करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, आपको दे देंगे. क्लियर? सो एक प्रकार से एक्सेस एप्लीकेशन, इफ वी हैव यूज्ड कॉर्पस, वी विल गिव यू बैक प्रोवाइडेड यू गिव इट बैक टू कॉर्पस. सो इट इज अ गुड आइडिया कि अब आपको, हाँ, वो 11.5 वाला नहीं, वो नहीं देंगे. वो जो आपने करा हुआ है 15%, तो उसकी एग्जेम्पशन तो आपने ऑलरेडी ले रखी है. उसकी एग्जेम्पशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, दो बार थोड़ी लोगे. ये तो कॉर्पस एग्जेम्प्ट किया था, आपने यूटिलाइज कर दिया, दोबारा रीफिल कर दिया, हमने मान लिया. यू आर रीफिलिंग द मनी. करेक्ट सर? अब आइए समीर जी आगे. सर, ये मेरा एकेडमिक डिस्कशन पूरे इंडिया में होता था. मैं कुछ बताता था, लोग मेरी बात मानते नहीं थे, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंसी में बड़े स्ट्रांग है. मेरी बात मानते ही नहीं थे. मैंने कहा भैया मैं कुछ बता रहा हूं, ये मेरी बात मान लो. कहते थे नहीं सर नहीं. मैंने कहा ठीक नहीं मानते तो मैं लॉ में ला दूंगा. और सुनिए क्या था. अब मैं एक सवाल कर रहा हूं. सपोज यू हैव 2 crore rupees lying in the bank. School college has 2 crore in the bank. They want to buy a building for 5 crore. And for that building of 5 crore, they have taken a loan of 3 crore. 3 crore loan taken, 2 crore money utilized from the bank, and you have purchased a building of 5 crore. What is the application during the year? कितना अमाउंट एप्लीकेशन है? क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो एप्लीकेशन है. तो सब कहते थे 5 करोड़ है. मैं नहीं मानता. कहते नहीं क्या बातें करते हैं, 5 करोड़ की एसेट ली है तो इट इज एन एप्लीकेशन. आई सेड ना, accountancy is right, it is application. क्योंकि accountancy में what will you do? You will create an asset of 5 crore in the balance sheet. Bank balance will go down by 2 crore, and liability side you will show loan by 3 crore. So it is application of 5 crore. मैंने कहा ये बेकार की बातें हैं, इनकम टैक्स अलग है अकाउंटेंसी से. आप बताइए मैम, you have taken a loan of 3 crore and you applied that loan of 3 crore for purchase of building. How can loan be an income? How can loan be an income? आपको तो इनकम को अप्लाई करना है, आपने तो लोन को अप्लाई किया है, तो ये इनकम, ये कैसे एप्लीकेशन? हम कैसे दे देंगे आपको 5 करोड़? हम तो 2 करोड़ देंगे. कहते हैं ये तो गलत है. बेटा गलत नहीं है, रुको. In future year when you repay the loan, that year will be taken as an application. जब आप लोन को रीपे कर देंगे, हम उस साल एप्लीकेशन मान लेंगे. क्या गलत किया मैंने? और उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे तो वो भी एप्लीकेशन हो जाएगा. क्या दिक्कत है? अब समझ में आया. सर बात तो आप ठीक कर रहे थे, मैं तो ठीक ही करता हूं, मेरी बात मान लिया करो. लेकिन मानते नहीं हो तो ठीक है, लॉ बन गया, ये लॉ हो गया. सो क्लैरिटी आ गई, लिटिगेशन खत्म और सब कुछ खत्म. ये आया सर 1023C में जो चेंजेस आई, मैं आपको बताना चाहता था. अब एक और प्रॉब्लम सुनो. माय ओन स्टूडेंट at Shri Ram College of Commerce, very learned man, became High Court judge, and thereafter he became Supreme Court judge, and after that he has retired 2 years back. आप कहोगे इससे तो हमें आपकी डेट पता लग गई, एज पता लग गई. मैंने कहा कैसे एज पता लगी? अरे बड़ा क्लियर है. He retired at the age of 65. 2 years he has already retired. So what is the total age? 67. तो इसका मतलब आपकी एज 67 से तो ऊपर है ही है. वो तो हो ही गई ना, क्योंकि मेरा स्टूडेंट था. मैंने कहा वही बातें करी. द गर्ल्स विल नेवर टेल यू द एज. उससे पूछो तो बताती ही नहीं है. तो मैं पूछता भैया आपके ब्रदर की क्या एज है? कहते जी 40 एज है. मैंने कहा आप आपसे कितने बड़े हैं? कहते 3 साल बड़े हैं. मैं कहा हो गया काम. समझ में आ गया क्या हुआ कि आपकी एज 37 है. तो वो भी नहीं बताती है. तो यहां पर भी यही हो गया, मेरी एज पता लग गई. वेल आई एम गोइंग टू बी 75 इन द मंथ ऑफ मे. I'm going to be 75, let me tell you. तो एज मैं बता दूं, मैं लड़की नहीं हूं, मुझे तो बताने में कोई शर्म नहीं है. लेकिन मेथड ऑफ इंडेक्सेशन और डिडक्शन से आप मेरी एज को तो निकाल ही सकते थे. 67 तो मेरा स्टूडेंट हो गया, तो उससे ऊपर ही होगी एज. अरे जेटली जी भी मेरे स्टूडेंट थे, अब तो उनकी बेचारों की डेथ हो गई, वो भी मेरे स्टूडेंट थे. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग?
अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ। इस जज साहब ने, जिनका नाम अर्जुन सीकरी सर है, वेरी वेरी लर्नेड जज, और बड़ी ऑनेस्ट जज एंड एक्सपर्ट इन इनकम टैक्स, वो कहते हैं आप ही ने पढ़ाया था इसलिए मैं एक्सपर्ट बन गया। मुझे कह रहे आपने पढ़ाया था इसलिए मैं एक्सपर्ट बन गया। सुनिए क्या हुआ। Employee contribution to recognized provident fund or ESI or any other fund under section 36BA, it is written, it will be allowed as deduction in the if the payment of the same is made on or before the due date under respective act. Please note the word under respective act. मतलब जो प्रोविडेंट फंड एक्ट में लिखा वो डेट, ईएसआई में लिखा वो एक्ट में देंगे तो हम डिडक्शन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब ये कोर्ट में जजमेंट आई थी, उन्होंने एमिल इंडिया लिमिटेड के नाम पे जजमेंट दी थी कि देखिए सर आप ये क्या बातें कर रहे हैं, इवन पीएफ वगैरह इंटरेस्ट लेकर वो पेमेंट आप ले लेता है तो आप इनको डिडक्शन क्यों नहीं देंगे। चलो हम ये कह देते हैं कि इफ यू मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट मेंशन अंडर 43B, दैट इज बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1), तो हम आपको ये डिडक्शन दे देंगे। अभी तक तो हो रहा था कि आप पेमेंट अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक कर देंगे तो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन हम आपको दे देंगे। ये उनकी जजमेंट के बाद 12 हाई कोर्ट हैड गिवन जजमेंट इन आवर फेवर, 12 हाई कोर्ट्स, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट नहीं माना और एक और हाई कोर्ट नहीं माना, लेकिन चल रहा था। पर आजकल तो नोटिस आ रहे हैं, सबको नोटिस आ रहे हैं कि इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन को इनकम मानेंगे क्योंकि आपने इसको ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, और सीए की 3CD में लिखा होता है कि डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। अब देखिए बेड़ा गर्क कर दिया। They have inserted an explanation under section 36(1)(VA) and also an explanation under section 43B, saying that it is hereby clarified that the due date mentioned under section 36(1)(VA) has nothing to do with the due date mentioned under 43B. That due date under 43B has nothing to do with the due date mentioned under 36(1)(A). क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि अगर आपको डिडक्शन लेना है employee contribution to provident fund or EIC or any other welfare fund, you will have to deposit the money of the employee contribution by 15th of next month if it is a provident fund, 21st of the next month if it is ESI. एक दिन भी ग्रेस नहीं है। अगर एक दिन भी डिले करेंगे तो वो खर्चा अलाउड ही नहीं होगा। आपकी तो ये इनकम मान ली जाएगी जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। आपकी इनकम मान ली जाएगी। मर गए सारे, एक दिन भी डिले हुआ वो खर्चा कभी मिलेगा ही नहीं। कहता है एम्प्लॉय का पैसा लेके रखा हुआ है, उस बेचारे का इंटरेस्ट लूज हो रहा है, हम तो आपको कहेंगे इसको जमा करा। अब कईयों ने मुझसे पूछा सर ये एक्सप्लेनेशन डाली है और लॉ के हिसाब से when explanation is inserted, it is inserted with retrospective effect from the day when the law came. तो उन्होंने कहा क्या सर हमारे पास्ट ईयर के केस खुल जाएंगे? Because there we have taken the deduction. Don't worry. This government had given an assurance that it will not be applicable, any provision will not be applicable from retrospective effect. ऐसा नहीं है, होगा तो ये retrospective effect से, but the cases will not be reopened. हम आगे से ध्यान रखेंगे, पीछे से हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फिर उन्होंने पूछा सर व्हाट अबाउट दोज केसेस व्हिच आर पेंडिंग इन द कोर्ट और ITAT? वो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो कहेगा हम मान जाए। लेकिन आगे से याद रखिए, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर प्लीज सी टू इट दैट मनी शुड बी डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट। अदरवाइज आप अपने फॉर्म 3CD में भी डालेंगे और 143(1)(A) में अगर उसको इनकम नहीं मानी आपने तो वो एडजस्टमेंट जो करते हैं ना इंटीमेशन में, वो एडजस्टमेंट करके आपकी इनकम मान ली जाएगी। क्लियर हुआ सर? ये क्लियर हुआ? दिस इज सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज VA रेड विद सेक्शन 43B, दोनों के नीचे एक्सप्लेनेशन डालती। आगे चलते हैं सर। दीज डेज एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कोविड भी आ गया, अदरवाइज ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट एक्चुअल सेल प्राइस लेस है। एवरीबडी इज स्क्रीमिंग कि व्हाट इज दिस, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड 43CA, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड 50C, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड 56 to 10।
43C में लिखा है अगर लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, then you should sell it at the stamp duty value, and if you don't sell it at the stamp duty value, the deemed consideration will be stamp duty value. 50C में भी यही है, लेकिन हमने पहले मार्जिन 5% का दिया था, याद है? 5%, actual consideration plus 5%. Then it was increased last year. I demanded 15, but they gave 10%. वो हो गया था. अब प्रॉब्लम क्या आई समीर जी, जरा सुनिए. These builders, real estate developers saying, sir, we have lot of stock with us, inventory. We are not able to sell the stock at the stamp duty value. Actual sale price, let's say, is 75 lakh. Stamp duty value is 1 crore. If I sell it at 75 lakh, you will charge me tax on 1 crore. Meri consideration 1 crore le loge. And even the buyer will have to pay tax on the 25 lakh because of inadequate consideration. सर ये तो मर गया. और वो आपने 10% का मार्जिन दिया, वो भी बहुत कम है. तो इन्होंने एक टेम्पररी मेजर दिया है मैम, 43CA रेड विद सेक्शन व्हाट यू कॉल 56(2)(10 टेम्पररी मेजर है. वो टेम्पररी मेजर क्या है कि देखिए, फ्रॉम 12th November 20 to 30th June 21 we are giving a relief by inserting a proviso that instead of 10% will give you the benefit of 20%. 20. मैं समझाता हूं कैसे 20% हुआ. Suppose you sell that stamp duty value is 1 crore. You sell it for 80 lakh. Now add 20% to 80 lakh. 80 plus 16, 96. Stamp duty value is still more. It is 1 crore. In this case, we will not give you benefit. You will take stamp duty value on 1 crore and you will have to pay tax on the basis of 1 crore, and the purchaser will have to pay tax on 20 lakh. Difference between 1 crore and 80 lakh, 20 lakh. ठीक है. लेकिन अगर अपना दिमाग लगाते, अगर 84 lakh कर देते सेल को, तो add 20% to 84 lakh, 16.8. So 100.8. Am I right? And compare sale price. Now stamp duty value is not exceeding 1.0, less है. तो इस केस में कंसिडरेशन प्राइस क्या होगी? 84 करोड़. सो प्रॉफिट भी 84 करोड़ से निकलेगा और बायर को भी 84 होगा. बायर को भी 84 होगा. है बढ़िया कि नहीं है? तो ये टेम्पररी रिलीफ है, ओनली अप टू 30th June. उसमें कंडीशंस भी हैं. The value of that residential house should not exceed 2 crore, and it should be a residential unit, and it should be a first time allotment. Please note the word first time allotment. Resale का नहीं है. तो हम ये बेनिफिट दे देंगे. तो ये भी हमने कर दिया. मैम अगला मैंने नहीं कराया. हाथ जोड़ के कहता हूं मैंने नहीं कराया है. मैंने मेरी गलती नहीं है. पहले 1 करोड़ का 5 करोड़ किया था, अब 5 करोड़ का 10 करोड़ कर दिया. और हमारे प्रेसिडेंट साहब, सॉरी चेयरमैन अभिषेक जी कहते हैं सर इस पे लाइट थ्रो करो, यंग मैन को बताओ क्या होगा. मैं क्या लाइट थ्रो करूं सर, वो गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं मुझे, अभिषेक जी आ रहे होंगे ना, तो मैं क्या लाइट थ्रो करूं उस केस में. सुनिए, 1 करोड़ का 5 किया था, मैंने नहीं कराया था, लेकिन वो कंडीशन है 95% पेमेंट शुड बी इन ए मोड अदर देन कैश, 95% रिसीट शुड बी इन ए मोड अदर देन कैश. तब मैंने कहा था अरे 5 करोड़ वाले के पास इतनी कैश की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, डोंट वरी. अब इन्होंने 10 करोड़ कर दिया, मर गए सब. मेरे ख्याल 70-80% तो टैक्स ऑलरेडी खत्म हो गया. लेकिन मैं बताऊं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैम, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये जो 10 करोड़ वाले टर्नओवर वाले थे ना, ये छोटे वाले अभिषेक जी, इनके रिकॉर्ड ठीक नहीं है. इनके पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी पूरे नहीं है, इनके पास एविडेंसेस भी पूरे नहीं है, कुछ इनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं. लेकिन हम तो अपने क्लाइंट को हेल्प करते ही करते हैं. हमारे पास तो 3CD में नॉट एप्लीकेबल बहुत बढ़िया आता है. हमारी जगह लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल. रिस्क किसका है वो नॉट एप्लीकेबल में? रिस्क तो मेरा ही है भाई. कल कोई पढ़ेगा तो कहेगा आपने कैसे ये किया. हम तो उठा के लिख देते थे नॉट एप्लीकेबल, और कई चीजें बताते ही नहीं थे. वो रिस्क तो खत्म हो गया. मेरे को तो टेंशन रहती थी यार, मैंने तो भरना ही, मैंने तो 40 साल से नहीं किया ऑडिट. 40 साल पहले तो टैक्स ऑडिट आया ही नहीं है. लेकिन यंग बॉय करते थे, आप सब करते थे. कुछ फायदा नहीं है इतना टेंशन लेना.
क्या है और मिलता भी क्या है। और मैम एक और बताओ, 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं उनको कंसोलिडेटेड फीस मिलती है, चाहे वो नॉर्मल ऑडिट हो या टैक्स ऑडिट हो या इनकम टैक्स का केस हो, अलग अलग कोई नहीं देता। तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं मिला तो ना मिला, रिस्क तो कम हो गया, नहीं मिला तो ना मिला, रिस्क तो कम हो गया। अरे ठीक है ना, हाँ बता देंगे उनको ये गलतियां ठीक करा देंगे, लेकिन हमारा जो अपलोड करना होता 1 मंथ बिफोर और फिर वो अपलोड ना हुआ तो उसको पेनल्टी पड़ती, अरे मुसीबत होती। अब जान छूट गई ना। अरे ब्लेसिंग इट गाइस, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पैसे नहीं कम होंगे। वो कहता है सर मेरे को अलग लेता था, मैं कोई बात नहीं, कहता मैं तो ऑडिट कर दूंगा, बताऊंगा ना, कर दूंगा। मैं कर ले भाई, फीस तो मिल जाएगी कह रहा है, मैं कह रुक जाना, कर देना, लेकिन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 जुलाई हो जाएगी अगर वो कंपनी का केस नहीं है। कभी गड़बड़ मत कर देना, मर जाएगा क्लाइंट। कोई डिडक्शन लेनी थी वो डिसअलाउ हो जाएंगी, कोई कैरी फॉरवर्ड और लॉस है वो मर जाए, ओ सर मर गए, ये भी तो ध्यान नहीं रहा। तो भैया छोड़ो ना, जीएसटी ऑडिट भी चला गया, ये रिप्रेजेंटेशन तो चितले साहब को करना चाहिए इंस्टीट्यूट के थ्रू, मुझे थोड़ी करना है। वो तो इंस्टीट्यूट का काम है रिप्रेजेंट करना और लाइसेंस करना अपना गवर्नमेंट के साथ, और उनको कहना ये क्या करती है। लेकिन भगवान ने हमें पैदा किया है ना, और इतनी मेहनत करा के सीए बनाया है ना हमें, तो वो हमारा ध्यान रखेगा। ही इज ग्रेट, ही इज वेरी काइंड, डोंट वरी कि ये चला गया। अरे सोचो, अच्छा है जितनी देर कर लिया, अब और कोई देगा। अब तो दिमाग भी काम का आ गया, अरे फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, फेसलेस पेनल्टी, सब फेसलेस हो गया। वो मर गए जो कहते थे हाँ बोलो क्या लेना है, समझे ना, आपस में शेयरिंग करते थे। लेकिन जिनका अब होगा प्रैक्टिस दिमाग की, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस, आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग, कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग, हाउ मच नॉलेज यू हैव, how do you reply the show cause notice, how brief you are and how crisp it is। ये पढ़ने वालों का दिमाग। इतनी मेहनत करके सीए की थी, बाद में लोग पढ़ना ही बंद कर गए। कहता जब पैसे दे के ही काम कराना है तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। अब पैसे दे के काम नहीं होगा, अब पढ़ना ही पड़ेगा, अब स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस सीपी प्रोग्राम करने ही पड़ेंगे और कंटिन्यूअस दिमाग में अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। मुझे सिर्फ इनकम टैक्स आता है, लेकिन अब मैं कंपनी लॉ को भी जरा ध्यान से पढ़ूंगा, क्योंकि जब मुझे कोई ओपिनियन देनी है तो कंपनी लॉ भी आ जाता है, जब मुझे ओपिनियन देनी है जीएसटी भी बीच में आ जाता है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। ये मत समझो मुझे सब कुछ आता है, होता है मुझे कंपनी लॉ आता होगा, लेकिन जीएसटी आता है थोड़ा बहुत, कंपनी लॉ आता है थोड़ा बहुत, और मुझे अभी तक भी कंपनी लॉ के ओल्ड प्रोविजन याद रहते हैं, नए तो याद नहीं रहते, क्योंकि अपने जमाने में तो ओल्ड ही पढ़े थे, और इतने साल प्रैक्टिस करते हुए 1956 के प्रोविजन सेक्शन याद आते हैं, हमें को नए सेक्शन 213 के याद ही नहीं आते। सर डी लर्न करना सबसे मुश्किल है, लर्न करना फिर भी आसान है, वो डी लर्न ही नहीं होता, वो याद ही रहते रहते, वो वाला प्रोविजन था 205, और वो वाला था 198, अरे वो वाला प्रोविजन था। वो कहता है सर क्या बातें कर रहे हो, सेक्शन 25 कंपनी नहीं कहते आजकल, आजकल सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। और मैंने कहा या भूल गया सर, भूल गया। तो ये चीजें बड़ा मुश्किल होता है, अब पढ़ना पड़ेगा। सर अगर एट द एज ऑफ 74 प्लस मैं पढ़ना चाहता हूं तो आप क्यों नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। जिंदगी तो यही है अच्छी, पढ़ते रहो और जीते रहो। अच्छा क्या फर्क पड़ता है सर, इतनी मेहनत सीए में करी है, उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा करेंगी, क्योंकि सीए में तो मेहनत करके भूल जाते थे, एग्जाम के बाद कुछ याद भी नहीं रहता था, कुछ नहीं याद रहता था एग्जाम के बाद। अब तो याद भी रखना पड़ेगा, क्लाइंट आएगा, हमेशा किताबें खोल के काम थोड़ी करोगे, वो कहेगा इसको क्या पता है, किताब ही देखता रहता है, पहले पढ़ के रखना। अब तो पढ़ना पड़ेगा। सीपी कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए वापस, थोड़ा बहुत ब्रेक देना पड़ता है मैम, नहीं तो लगता है कि यार ये बोरिंग हो गया, काफी देर हो गई, कुछ कोई बताया ही नहीं उन्होंने, कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं जो बता रहा हूं मेरे से पूछा गया था। सर जस्ट अ मोमेंट सर, all the participants, if you have any query, please write in question and answer
question and answer format, so that at the end, Amruta will take read questions for you, and Ahuja sir will answer your queries. Thank you. Over to you, Ahuja sir. एक चिताले साहब ने कहा था कि वो जो मैं भूल गया कहने के लिए कि वहां पर उन्होंने 43 सीए में तो लिख दिया, 56 में नहीं लिखा कि वो वहां पर प्रॉपर्टी लिखा है। नहीं सर, लिखा है, वहां लिखा है प्रॉपर्टी रेफर टू इन प्रोवाइजर टू सेक्शन 43C1। वो कह रहे थे वो जो 20% है क्या सब प्रॉपर्टी का होगा? जी नहीं चिताले साहब, उसमें लिखा है कि वही वाली प्रॉपर्टी जिसका 20% 43CA में लिया है, वही वाली प्रॉपर्टी 56। तो वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मुझे याद क्यों आया, चिताले साहब ने मुझे कहा था, चितले साहब ने, सॉरी चिताले कह दिया, चितले साहब ने मुझे कहा था 45(4) के बारे में जरा लाइट डालना, 45(4) एंड 4A। इसलिए मुझे याद आ गया कि उन्होंने वो भी बताया था। आइए 45(4) क्या था पहले। 45(4) क्या होता था? If there is a dissolution or otherwise in case of a firm or AOP, and at the time of this, if you distribute any asset in kind to the partners, then for the purpose of computing capital gain in the hands of the firm, the market value of that asset shall be taken into, will be treated as consideration price. मार्केट वैल्यू से कंसीडरेशन प्राइस मांगी जाएगी। ये नहीं है एक लैंड खरीदी थी आपने 5 करोड़ की और आपने पार्टनर को डिसोल्यूशन पे 5 करोड़ की दे दो, कहता ना मार्केट वैल्यू निकालो। आज कितनी मार्केट वैल्यू है? 11 करोड़। 5 करोड़ को इंडेक्स करो और उसकी मार्केट वैल्यू निकालकर पहले कैपिटल गेन टैक्स दो, क्योंकि एज इफ आपने बेच दी, एज इफ अपने पार्टनर को दी तो उसको बेच दी। ये डिसोल्यूशन में था। और एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी हाई कोर्ट की, AN नायक, वो कहता था इवन रिटायरमेंट इज आल्सो इंक्लूडेड। बट पहले वो रिटायरमेंट कई कहते थे नहीं है, कई जजमेंट कई कि नहीं है, इसमें लिखा था। अब सुनिए क्या किया, इसको 2 भाग में भाग कर दिया, 45(4), 45(4)A। अब सिताले जी कह रहे थे 45(4) क्या है और क्या किया है। 45(4) में क्या किया है? सपोज यू हैव ए कैपिटल बैक, पहले तो कह दिया 45(4), 4A में दोनों में कहा है इट विल बी डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन, पहले ही चेंज कर दिया, मतलब तो रिटायरमेंट भी इंक्लूड हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज डिसोल्यूशन। अभिषेक जी दोनों कवर हो गए, दोनों। पहले ओनली डिसोल्यूशन था, बाकी में डाउट था, सो लिटिगेशन खत्म। सेकंड पॉइंट 45(4) में क्या किया इन्होंने? इफ देयर इज ए कैपिटल बैलेंस एंड यू आर गिविंग कैपिटल एसेट इन लिeu ऑफ दैट कैपिटल बैलेंस, जितना कैपिटल बैलेंस है उसके बदले आपने कैपिटल एसेट दे दी। पहला तो उन्होंने बोला ये जो कैपिटल बैलेंस है उसमें रीवैल्यूएशन अलाउड नहीं होगा, कि लोग क्या करते थे 1 साल पहले एसेट को रीवैल्यू करके कैपिटल बढ़ा देते थे। वो कहता है ये फिक्टिशियस है, हम उसको नहीं लेंगे। सपोज आपका कैपिटल बैलेंस इस वक्त 60 लाख है और उसमें रीवैल्यूएशन 20 है, वो तो हटा दो, अब 40 है हमारा, इसके बदले आप एसेट देना चाहते हैं। 45 में like you want to give this asset, you will have to calculate the capital gain on the basis of market value of that asset. वही वाला प्रोविजन मार्केट वैल्यू से लेना पड़ेगा, ये नहीं होगा, और देयर विल बी अ कैपिटल गेन टू द फर्म। अब सेकंड आइए, सेकंड केस में लिखा देयर इज अ कैपिटल लाइंग विद यू 40 लाख। अब पार्टनर रिटायर हो रहा है, आप या पार्टनर को दे, आप क्या कह रहे हैं पार्टनर को, ले भाई मैं तेरे को 70 लाख दे रहा हूं, 40 लाख तेरा बैलेंस है, रिवैल्यूएशन नहीं होगा, आई एम गिविंग यू 70 लाख। द लॉ सेज लुक हियर, you are paying more than his capital and you may be paying even money plus asset. We will calculate the market value of the asset plus money, and the difference between this is consideration price, and the capital 40 lakh, जो difference आया 30 lakh, वो capital gain लगेगा in the hands of the firm। मतलब क्या करा करते थे, 40 लाख उसका, उसको 60 दे दिया, वो कहते थे 60 दिया है तो उसमें और रिवैल्यूएशन करके दे दिया, कहते पहले तो रिवैल्यूएशन नॉट अलाउड, नाउ यू आर पेइंग मोर, इंस्टेड ऑफ 40 यू आर पेइंग 70, दिस 30 लाख विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ द फर्म और एओपी। तो ये क्लियर हो गया सर, 45(4) और 4A मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की, कोई क्वेरी होगी तो बता देना। आगे चलता सर, 80EE is a case of that you have taken a loan, got a loan sanctioned up to 31 March 21 for purchase of an affordable house
the value of which does not exceed 45 lakh. And if you take a loan and you don't have a house already with you, then you buy a house, we will give you an additional deduction of interest to the extent of 1,50,000. एक एडिशनल मिलती थी जो 24 में 2 लाख वो अलग है, ये एडिशनल 1.5 लाख रुपया देंगे। अगर आपने कोई घर अफोर्डेबल हाउसेज की वजह से यू हैव टेकन ए लोन एंड लोन मस्ट बी सैंक्शन अप टू 31 मार्च 21, क्योंकि कोविड हो गया, ज्यादा सैंक्शन भी नहीं हुई और लोगों ने खरीदा भी नहीं, सो दिस 31 मार्च हैज बीन एक्सटेंडेड 21 to 22. So 80EEA benefit you can still take if you take a loan up to 31st March 22. ये बेनिफिट किया। 80IBA अफोर्डेबल हाउसिंग वालों को 100% रिडक्शन मिलती थी फॉर द प्रॉफिट फ्रॉम द हाउसिंग प्रोजेक्ट, लेकिन वो सैंक्शन होने चाहिए थे अप टू 31 मार्च 21। कोविड की वजह से इसको भी 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया, अप टू 31 मार्च 22 तक सैंक्शन हो जाएंगे तो हम आपको ये भी बेनिफिट दे देंगे। ये भी हो गया 81BA। समीर जी एक और नई चीज डाली है, एक और नई चीज डाली है। मोदी जी ने कहा था कि ये माइग्रेंट लेबर आते हैं, बॉम्बे में भी आते हैं, पुणे में भी आते हैं, दिल्ली में भी आते हैं, सब जगह। दे कांट अफोर्ड टू बाई हाउस, 1 2 इफ दे टेक ए हाउस ऑन रेंट, बहुत कॉस्टली रेंट है, नहीं तो झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी क्या बनाई हुई है आपने देखो बॉम्बे में, कहाँ जाएं बेचारे, उनको क्या। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम एक नया कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं बिल्डर्स के लिए, रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट। वो छोटे छोटे घर बनाए, रेंट के लिए दें, और से जो प्रॉफिट आएगा हम उस बिल्डर को पूरा माफ कर देंगे। क्या फायदा होगा, ये माइग्रेंट लेबर को सस्ते घर मिल जाएंगे और वो आराम से कंफर्टेबली रह सकेंगे, 1 रूम सेट हो, कुछ भी हो, ये कर दो। तो ये नया सेक्शन 80IBA में सब सेक्शन 1A डाला है जो मैंने आपको बता दिया। अब जरा ध्यान से सुनना, समीर जी ध्यान से सुनना, मैडम चली गई और वो तो आते जाते रहते हैं अभिषेक जी, क्योंकि गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, लेकिन मैडम चली गई। नहीं ठीक है समीर, आ गई मैम। अब मैम मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत फायदेमंद काम करा रहा हूं जो आपको बता रहा हूं। देखिए अभी तक क्या होता था, द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न was up to 31st March, that is before the end of the relevant assessment year. 31 मार्च तक बिलेटेड फाइल कर सकते थे। अगर कोई आपने कोई वो था, कोई ओमिशन थी, रॉन्गफुल स्टेटमेंट थी, you could revise up to 31st March. Am I right? Now they have said you will have to file a revised return or belated return at least 3 months prior to the end of the assessment year. मतलब 31 दिसंबर तक you will have to file the return whether it is belated or revised. उसके बाद करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। तो मैडम खाली हो गए ना जो इनकम टैक्स का काम करते हैं। अब तो रिटर्न खत्म हो गई, पहले तो हम मार्च तक करते रहते थे और लोग आते ही लास्ट दिनों में मार्च तक लेट रिटर्न कर देते थे, बिलेटेड। अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती थी कहते थे कर लेंगे, मार्च तक टाइम है, मार्च तक कर ले। नहीं जी, 31 मार्च तक रिटर्न खाली कर लीजिए, अपना न्यू ईयर अच्छा मनाइए और जनवरी फरवरी भी ऐश करिए, ले जाइए बच्चों को घूमने। और लेडीज को तो साथ पता है, उसने मैडम कहने लगी ये कि जी देखो वो केसेस भी तो कराने होते हैं, वो केसेस जो टाइम बाद हो जाते हैं वो भी तो कराने होते हैं मैडम, वो भी खत्म। क्योंकि उसके लिए भी 153 में जब वन टाइम इट वाज 24 months, then it was brought down to 21 months, then it was brought down to 18 months, then it was brought down to 12 months. अब भी 9 months मिलेंगे एंड 31 दिसंबर तक टाइम बाद केसेस भी खत्म। कितना रिलैक्स करो, मजे आ गए। सीए पागल हो गए थे काम करते करते। अब तो दिसंबर के बाद कुछ करना ही नहीं है, ऑडिट भी तो नहीं करना, ऑडिट भी तो मार्च में आएगा जाकर, मार्च के बाद होगा। तो जनवरी फरवरी मार्च छुट्टियां हो गई, मैडम आप घर का काम भी देख सकेंगे। अभी तक तो घर वाले भी नाराज होते थे, सारा दिन काम करते रहते हो, घर का कोई देखता ही नहीं है, घर बिगड़ रहा है। अब घर नहीं बिगड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च बच्चे भी खुश होंगे, छुट्टियों में जाओ उनको ले जाओ, क्योंकि दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न
और लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न एंड इवन द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इज अप टू 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो फायदा हो गया ना। और दूसरा सुनिए, कई लोग क्या करते थे समीर जी, रिटर्न फाइल नहीं करते थे जुलाई की, क्या कहते थे, यार इंतजार कर लो, पुराने साल की रिटर्न का स्क्रूटिनी ना आ जाए, उसके हिसाब से देखेंगे, थोड़ा रुक जाओ ना, पेनल्टी देनी है ले लो, लेकिन रुक जाते हैं कि देख आराम से करेंगे, क्योंकि अब स्क्रूटिनी आ गई लास्ट ईयर की, तो फिर उसको देखकर करेंगे। आता था ना, लीजिए उसको भी प्रीपोन कर दिया ना। नोटिस अंडर 143(2) कैन बी सर्व्ड ओनली अप टू 30th June, 3 months from the end of the financial year in which the return is made. So 30 जून तक अब तो आ गई, नोटिस भी आना है, 30 जून के बाद तो आना ही नहीं है। और फिर आप जुलाई की रिटर्न तो भर दो ना। अब क्या दिक्कत है, अब तो पेनल्टी भी नहीं लगेगी, जुलाई तक भर दो। पहले तो इंतजार करते रहते थे यार, अपने क्लाइंट को कहते थे स्क्रूटनी ना आ जाए, रुक जाओ, 5,000 का फाइन है दे देंगे, लेकिन कई फायदे होते हैं, आपको बता रहा हूं। और वो अब 30th June, सो ये भी क्लियर हुआ। 143(2) चेंज्ड, 153 पीरियड चेंज, 139(4) चेंज्ड, 139(5) चेंज। क्लियर सर, इतना में। अब एक और सर्च केसेस, जो 132 में सर्च होता था, 132 में रिक्विजिशन होता था, दे वर सपोज्ड टू बी असेस्ड अंडर सेक्शन 153A एंड 153C। मालूम है 153A 153C होता था और 6 years की रिटर्न भरनी पड़ती थी, एंड इवन बियॉन्ड 6 years भी जा सकते थे इफ इन एनी ऑफ द पीरियड ऑफ 4 years और ऑल द 4 years द इनकम स्केप्ड असेसमेंट वाज 50 लाख और मोर, तो 10 साल तक केस खुल सकते थे। 6 तो पक्का ही थे सर्च में, और 4 और थे। जब 53, आप जो भी देखिए सुनिए, एनी सर्च विच इज कंडक्टेड आफ्टर 31st March 21, देयर विल बी नो 153A और 153C, वो नहीं होंगे, बट दैट विल बी इंक्लूडेड इन 147। जो नॉर्मल 147 होता था उसमें सर्च केस भी आ जाएंगे, इनकम स्केपिंग असेसमेंट। क्लियर हुआ? क्योंकि 147 सर्च इधर तो इंक्लूड हो गया, तो सारे सेक्शन बदल दिए, 147, 148, 149, 151, 153, सारे सेक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिए। बड़ी मुश्किल से तो समझ में आए थे सेक्शन, अब उसको दोबारा पढ़ो, 147 पढ़ो अगेन, 150, सारे सेक्शन आपको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। देखिए पहले 147 में रीजंस टू बिलीव होते थे, he has reasons to believe there is some income which has escaped assessment, और फिर आपको कहा जाता था आपका 148 आया, रिटर्न भरो। आप कहते थे रीजन बताओ, वो कहते थे नो, फर्स्ट फाइल रिटर्न, then we will tell you the reason, then you can file the objection against the reason, then we will dispose of the reason, and then we will objection, and then we will go for 147। रीजन बताते नहीं थे, चुप रहते थे, आपको वॉच करते थे क्या करोगे, कौन सी इनकम स्केप हुई है आपको बताते नहीं थे, ताकि आप इधर फंसोगे तो वहां ले लेंगे। अब देखिए क्या है, अब इनकम टैक्स बहुत शरीफ हो गया है। पहले कहते थे पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल, रिटर्न भर दो, हम कुछ नहीं बताएंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन वो चुप बैठे रहते थे। पूरी इंटेलिजेंस यूनिट का इतनी इंफॉर्मेशन बताते नहीं थे। जब आप रिटर्न भरते थे, कोई इनकम स्केप होगी होती थी, नहीं होती थी तो 143(2) कर देते थे, 143(3) हो गया। उसके बाद भी कोई इनकम स्केप हो जाती थी 6 साल तक, तो क्या करते थे, 148, 147 करते थे। आपको बताते नहीं थे, कहते पहले भरो फिर हम बताएंगे क्या रीजन है। अब वो कहते हैं हमारे पास बहुत कुछ है, तो एक नया सेक्शन डाल दिया मैम, 148A। 148 में कहा कि अगर एओ के पास इंफॉर्मेशन है, वो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी मेक एन इंक्वायरी, मेक इन्वेस्टिगेशन, एंड आपको शो कॉज नोटिस भी देगा that such and such income has escaped assessment. Kindly show cause why this case may not taken under 147. मतलब आपको पहले ही बता दिया कि आपने ये किया है, ये वाली इनकम स्केप हुई है, ये कारण हुआ है, बताओ। पहले नहीं बताते थे, वो कहते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जाओगे कहां, हम बता रहे हैं ये है, तो आप बता दो। उसके बाद 148 होने के बाद फिर 148 का नोटिस जाएगा, और 148 का नोटिस जाकर
फिर आपको 147 करेंगे। वेलकम टू योर ऑफिस सर। अभिषेक जी ऑफिस पहुंच गए हैं, पहले ट्रेवल कर रहे थे। चलिए चलिए आगे बढ़ता हूं। अब क्या किया है, लेकिन रुकिए, 148A will not be applicable in case of search, in case of seizure, in case of requisition, in case of survey, in case money, bullion, jewelry is found in your possession। क्यों? वो तो वैसे ही इन्वेस्टिगेशन हो गया ना। जब सर्च हुई है तो इन्वेस्टिगेशन तो हो गया ना, सर्वे हुए तो सारी इंक्वायरी हो गई ना। तो उसके लिए 148A नहीं है, उसके लिए आपको शो कॉज नहीं दिया जाएगा, उसके लिए तो अप्रेजल रिपोर्ट बन गई है, उसके लिए नहीं है। ये ओनली नॉर्मल केस ऑफ रीअसेसमेंट में आपको 148 दिया जाएगा, फिर 148 देकर 140। लेकिन कितने साल की असेसमेंट होगी? पहले होती थी अंडर सर्च 6 years प्लस 4 years, और अंडर नॉर्मल केसेस 4 years मैक्सिमम 6 years। यही है ना जी? नाउ इट विल बी ओनली 3 years। income escaping assessment can be reopened within 3 years from end of financial year in which income has escaped assessment। सिर्फ 3 असेसमेंट ईयर कर दिए, 6 के बदले 3। आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं। जब आपको रोज बता देते हैं कि आपने ये चीज खरीदी, ये है, और 26 ईयर्स में सब कुछ तो आ जाता है, तो वो कर रहे हैं। सुनिए, 3 साल। लेकिन उन्होंने कहा रुको 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 रुको, हम 3 के बियॉन्ड भी जा सकते हैं, अप टू 7 years। बट वेट, दैट ईयर वेयर द इनकम escaped assessment is minimum 50 lakh और इट इज 50 lakh और मोर। मतलब 50 से कम होगा तो 3 साल ही रहेंगे, बियॉन्ड नहीं जाएंगे। लेकिन उन 3 साल के पीछे जो 7 साल हैं, इन एनी ईयर इट इज मोर देन 50 lakh, उसको ले लेंगे, बाकी को नहीं, जो मोर देन 50 lakh होगा। पर पहले ये नॉर्मल केसेस में तो 6 ही थे, लेकिन अब रिस्क बढ़ गया, 10 तक हो गए। सर्च के केस में 6 का बेनिफिट मिल गया, सिर्फ 3 रह गए, और बाकी 7 साल में जब तक 50 नहीं होगा पर्टिकुलर ईयर में, तब तक वो नहीं लेंगे। काफी रिलीफ भी है, काफी वो भी है। और ये सेक्शन 143, 47, 48, 49, 51, 53 सब चेंज कर दिए गए। अगला पॉइंट, अभिषेक जी, पार्लियामेंट में हमारी मैडम बोली, फाइनेंस मिनिस्टर, देखो हम कितना फायदा करा रहे हैं। कौन सा फायदा कराया? जो 75 ईयर के लोग हैं उनको रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। देखिए कितना फायदा है। मैंने कहा कौन सा फायदा करा दिया? सिर्फ 2 ही इनकम तो है, इनकम फ्रॉम पेंशन एंड इनकम फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट। ओनली बैंक इंटरेस्ट, इवन पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, इनकम फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट। और सुनिए, बाकी कुछ बताया नहीं है। वो तब फायदा होगा जब पेंशन भी और इंटरेस्ट भी एक ही बैंक अकाउंट होगा। मतलब ब्रांच अलग हो सकती है, बैंक अकाउंट एक ही होगा। अगर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हुए, थैंक यू वेरी मच, फिर नहीं भरनी पड़ेगी आपको, एक ही बैंक अकाउंट, क्योंकि वो बैंक टीडीएस काटेगा सारे इनकम पर। टैक्स तो ले लेगा, टैक्स थोड़ी छोड़ा है, टैक्स वो लेके जमा करा देगा आपके बजाय। क्या फर्क पड़ता था मैडम? फॉर्म 1 भरने में 2 मिनट लगते है क्या? 2 आइटम तो थी, पेंशन और इंटरेस्ट, और तो कुछ है ही नहीं, और उसको सुगम में डाल दिया, और वो तो हम भर दिया करते थे। आपको पता है 31 जुलाई की 50% रिटर्न, 50% रिटर्न अभिषेक जी, समीर जी, हम फ्री भरते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भरते हैं। सबको पता है, सबको भरनी पड़ती है। और रिश्तेदार तो सबसे ज्यादा तंग करते हैं, फ्रेंड्स एंड रिश्तेदार। एक तो आएंगे ही लास्ट में, पहले आएंगे नहीं। फिर मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा वो मेरा बाहर बैठा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस कमरे में चले जाओ और रिटर्न भरवा लो। कहते हैं ना हम फ्री के हैं ना, इसलिए कहते हैं उससे भरवा लो, हम तो आपको दिखाएंगे। भाई साहब, उसको कमरे में बिठाना पड़ता है। पिछले 1 साल में एक बार आएंगे, सारे पिछले साल की बातें बताएंगे, चाय भी पिएंगे, बिस्किट भी खिलाएंगे, और फ्री में काम भी करेंगे। ये हम सीए हैं ना, हमको वकील थोड़ी हैं जो पहले पैसे रखवाते हैं। हम तो शरीफ आदमी हैं, हम तो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री करना ही। और रिश्तेदार सबसे ज्यादा तंग करते हैं, ये फ्रेंड सर्कल सबसे ज्यादा तंग करता है। अरे भैया जल्दी आ जाओ, आएंगे ही नहीं। आएंगे तो कमरे में बैठेंगे आपके, कैबिन में नहीं, और वो बैठा हुआ दूसरे आदमी को भी नहीं बात करने देंगे। चाय पिएंगे, अरे 5 मिनट चाय पी के बिस्कुट खा के चला जाना, नहीं 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 नहीं। और फिर कहेंगे अच्छा मैं जा रहा हूं, और फिर उस रिटर्न को दोबारा लाएंगे, जरा चेक कर लो। अरे भैया वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है, इतने लोगों की रिटर्नें भरी है, मैं तेरा क्या चेक करूं, और है भी क्या उसमें?
उनका 200 रुपए भी टीडीएस आता है ना, तो 10 बार फोन करते हैं, सर मेरा 200 रुपए का टीडीएस अभी वापस नहीं आया। आता है कि नहीं आता है? हे परमात्मा, अब 200 400 500 रुपए के लिए मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चेक करूं कि क्या हुआ, और मैं कहता आ जाएगा यार, थोड़ी देर रुक जा। नहीं नहीं सर, 500 रुपए रह रहे हैं मेरे। ऐसे लोग होते हैं। अब क्या है सुनिए, मुझे थोड़ा सा टाइम ब्रेक देना था, मैंने ब्रेक दे दिया। तो 194P में अगर उसकी कोई डिविडेंड इनकम है, म्यूचुअल फंड इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कोई शेयर बेचे कैपिटल गेन है, तो भर ही नहीं सकता। और 194P भरेगा तभी जब 2 इनकम है और एक ही बैंक अकाउंट है। ये तो वैसे शुगल मेला है, 5-7 हजार लोगों को कोई फायदा होगा तो होगा, लेकिन पार्लियामेंट में कहने के लिए, तालियां बजाने के लिए तो टाइम था ना, तालियां बजा दी लोगों ने। देखो 75 साल के ऊपर कोई रिटर्न नहीं भरनी। आइए वापस आते, अगला सेक्शन देखिए। लास्ट ईयर 206C1H आया था, याद है 201C1H क्या कहा था? सेलर ऑफ द गुड्स while collecting the payment from the buyer of the goods of an amount exceeding 50 lakh in a year shall collect TCS at the rate of 0.1%। था ना जी? अगर सेलर वो है जिसका 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, सेलर प्रीसीडिंग प्रीवियस है, और बायर का टर्नओवर कुछ भी हो में नहीं, बायर के गुड्स से अगर खरीदता है तो एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट सेलर विल कलेक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 0.1%। और कईयों ने अपने सॉफ्टवेयर बदले, कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो बिल पे ही टीसीएस कलेक्ट करने का कह दिया, कई डेबिट नोट दे रहे। सारे सॉफ्टवेयर बेकार हो गए। क्यों? अब एक नया सेक्शन डाल दिया 194Q saying that a person who buys goods from a seller and responsible for making payment to the seller of an amount exceeding 50 lakh will deduct the TDS at the time of payment or at the time of credit of the amount of exceeding 50 lakh, whichever is earlier, at the rate of 0.1%। मतलब अब बायर है ना गुड्स के, तो बायर टीडीएस कलेक्ट करेगा, डिडक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ crediting the invoice, total invoice exceeding 50, or at the time of payment exceeding 50, whichever is earlier। कितना? 0.1%। कौन करेगा? बायर। एक कंडीशन देख दी, बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ऊपर, तो कौन करेगा? बायर। क्या करेगा? 0.1% टीडीएस काटेगा। तो वो 206C1H क्या है? कहते रुको, अब कंपैरिजन कर रहा हूं, जरा सुन लेना अभिषेक जी और मैम, जरा सुनना। अगर बायर का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ लास्ट ईयर में था और 50 से अबव है, तो 194Q लगेगा, 194Q लगेगा। अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से अबव है, तो 206C1H लगेगा। वहां सेलर कलेक्ट करेगा टीसीएस कहां से? बायर से। तो क्रेडिट किसको मिलेगा? वो टैक्स का, बायर को। लेकिन किसका टर्नओवर का ज्यादा है? सेलर का 10 करोड़ से ऊपर और बायर का 10 करोड़ से नीचे, और 50 लाख के ऊपर 0। अब देखिए मैम, दोनों का 10 करोड़ से अबव है, सेलर का भी और बायर का लास्ट ईयर। पता कौन करेगा? 194Q बायर करेगा, सेलर नहीं करेगा। फिर 206C1H खत्म। हालांकि उसका भी 10 करोड़ से ऊपर है, कहता ना। अब दोनों का 10 करोड़ से कम है, फिर तो कोई भी सेक्शन नहीं लगेगा, 194Q भी नहीं लगेगा और 206C1H भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है 206C1 एक ही केस में लगेगा, जब सेलर का 10 करोड़ से अबव और बायर का 10 करोड़ से नीचे और अमाउंट रिसीव्ड मोर देन 50 लाख। क्लियर हुआ? ये है सर जो आया। आगे चले, 206AA में आपको लिखा कि आप पैन नंबर नहीं देंगे तो आपको टैक्स किस रेट पे कटता है? कोई बताएगा किस रेट पे टैक्स कटता है 206AA में? आप अनम्यूट करके बताओ। 20%। यही तो गलती करते हैं हम। 20 नहीं है मैं पर सर, इट इज एट द रेट एप्लीकेबल और एट द रेट इन फोर्स और 20% whichever इज हायर। अगर लॉटरी पे 20% काटेंगे, रेस पे 20% काटेंगे, वो तो 30 होता है।
सो जरूरी नहीं है 20 से कम है तो 20 और 20 से ज्यादा है तो वो कटेगा। सर ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में गलती नहीं करनी है, तीनों चीजें याद रखनी है। अब हमारे महानुभाव देखिए सर, अभिषेक जी, हमारे कई महानुभाव ऐसे हैं टीडीएस तो कटवा देते हैं, 26 में भी आ जाता है लेकिन रिटर्न भरते ही नहीं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, 1% टीडीएस कट गया, दे डोंट फाइल रिटर्न। वो कहते कट गया तो क्या हुआ, 1% गया ना, सरकार भी खुश, मैं रिटर्न ही नहीं भरता। अरे कई जगह 2 कटता है, इवन लीजिंग ऑफ फर्नीचर वगैरह में भी 2% है, वो रिटर्न ही नहीं भरते। सरकार कहती है इनको भी पकड़ते हैं। क्या रूल बनाया, इफ एसएससी हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर द लास्ट 2 previous year, two year, and in each previous year the TDS or TCS was more than 50,000, kitna, more than 50,000 in each, then in this case the deductor at the time of making payment to the deductee will deduct twice the rate of the tax, twice the rate applicable, twice the rate in force, और 5%। हाँ, पैन दिया तो मतलब अगर 5% का रेट है तो 10 कटेगा, 10 का रेट है तो 20 कटेगा, लेकिन 1 का है तो 5 कटेगा, क्योंकि वो whichever is higher, 5 तो मिनिमम होगा या डबल द रेट। आप में से पूछेंगे अभिषेक जी, मुझे क्या पता, मैं जब उसको पेमेंट देने जा रहा हूं या टीडीएस काटने जा रहा हूं कि उसने 2 साल की रिटर्न भरी है नहीं भरी, मुझे क्या पता। और फिर वो क्या है, चिंता मत कीजिए, यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उस यूटिलिटी में जाना, उसका पैन नंबर डालना, वहां पर सामने आ जाएगा कि उसने ये 2 साल की रिटर्न ने भरी है कि नहीं भरी। अगर नहीं भरी तो डबल द रेट, भरी तो नॉर्मल रेट। और एक और बात है, अगर वो पैन नंबर भी नहीं देता तो डबल हो गया, विच एवर हायर, 206 AA और 206 AB, विच एवर इज हायर, ये भी बता दिया। इसी तरह टीसीएस में भी डाल दिया 206 AA। आगे बढ़ता हूं सर, वो जो सेटलमेंट कमीशन में सेटल करते थे ना, सेटलमेंट कमीशन में सेटल कर लो आपस में, खत्म, वो काम ही धंधा बंद, वो सेटलमेंट ही होती थी, समझिए ना क्या होता था वो खत्म। आईटीएटी में भी बहुत ज्यादा जान पहचान लगाया करते थे, वो भी खत्म। आईटीएटी भी 255 सेक्शन में आकर फेसलेस होने जा रही है, वो भी खत्म, वो भी गया। अरे एक नई चीज निकाली हमने रिकमेंड करी थी, लेकिन अभी तो इनिशियल है, 245MA डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। अगर आपने 50 लाख की रिटर्न भरी, अभी तक यही है, और 10 लाख रुपए का वेरिएशन है, तो आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जा सकते हैं, बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ओ बैठना नहीं है, ये मत समझो कि सामने बैठ के बोलो सर क्या करना है, ना, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो कोई गलत बात मत कहना, सर बताओ क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग ऑनलाइन। वो भी गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ फेसलेस होने जा रहा है। अब लास्ट पॉइंट, एक 271 AD है जिसमें कोई फेक एंट्री, फेक इनवॉइस, फेक एक्सपेंडिचर है ना सर। उसमें क्या है, पहले तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सेकेंडली 200% पेनल्टी देनी पड़ेगी, और थर्ड 271 AD में लिखा है मिनिमम 100% पेनल्टी टू द एक्सटेंट ऑफ, जितना भी अमाउंट है फेक का 100% पेनल्टी पड़ेगी। और जिसने वो एंट्री दिलवाई, जिसने वो करवाया, उसको भी 100% पड़ेगी, है ना सर। 271 AD आया लास्ट ईयर। अब एक और चीज डाल दी, अगर 2 करोड़ से ऊपर का ज्यादा गड़बड़ है तो उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाएगी, प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाएगी, 281B डाल दिया है। तो लीजिए सर, आई हैव कंप्लीटेड द ऑल प्रोविजन। एक बार छोटे मोटे रह गए होंगे, जान के छोड़ दिए। आप पूछिए जो सवाल पूछना है, पर जरा जल्दी पूछ लेना, मेरा अगला भी रेडी है। आज 7 प्रोग्राम है, 7 में बोलना है, रात को 10:30 बजे खत्म होगा, तो इसलिए जो पूछना पूछ लीजिए। Yes, sir. हाँ, Manik Naik want to ask, 2,50,000 is one time paid in case of 10D. 10 10D. in any previous year.
आप बार बार दें या एनी प्रीवियस, मतलब 10 साल पेमेंट देनी है, एक सी साल 2.5 लाख से ऊपर हुई तो भी आ गया, 2 साल हुई, मतलब एक भी टाइम 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 250। लेकिन रखना याद, अगर 10-10D में जाना है तो सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा भी तो नहीं हो सकता, याद करिए, वहां 10% सम एश्योर्ड लिखा है, लेकिन 10-10D से बाहर आना है तो 250 से अबा है तो फिर भी यहां से गए और कैपिटल गेन में जाए। क्लियर? Next question, why is employee contribution only exempt 2,50,000 lakhs per annum, whereas employee's contribution is exempt till 7.50 lakhs? देखिए लॉ में वाई नहीं होता है और लॉ में वाई नहीं होता, मतलब 2.5 लाख रुपए भी बड़े पैसे सेव करके जमा कराना मिडिल क्लास वाले को से बस का है, मतलब हाई क्लास वालों को उन्होंने रगड़ा है कि भैया उससे ज्यादा क्यों, वाई नहीं होता कभी भी, लॉ में कभी वाई नहीं होता। अरे वो 60 लाख से 7.5 आ गया, अब क्या कहते हो और कम करवा दूं, उसको भी खत्म करा दूं, उसको भी 2.5 लाख करवा दें। रुक जाओ यार, चलने दो, थोड़ा बहुत तो अमीर आदमियों को भी करने दो, तो ये वाई नहीं होता लॉ में कभी भी। वाई 2,50,000 एग्जेम्पशन, वाई नॉट, और वाई 3 लाख पर सीनियर सिटीजन एंड वाई 5 लाख पर 80 इयर्स, वाई नहीं होता लॉ में, वाई इज नो, लॉ इज लॉ, सो डोंट आस्क द क्वेश्चन वाई। चलिए आगे बोलो। Sir, for high value salary, please suggest some ways where exemption can be claimed other than देखा देखा देखा, अब मेरे पास आ रहे हायर वाले को, पर क्या करे सर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरे सारे लेक्चर सुनते हैं और मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, मैं नहीं बताऊंगा, अपने पर्सनल लेवल पे आइए, अब टेलीफोन पे फिर भी बता दूंगा, यहां नहीं बताऊंगा, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। चलिए आगे। Still, employees' contribution will also be disallowed if not paid on due date corresponding to नो amendment. नो नो, प्लान कंट्रीब्यूशन इज 43B और फिर लिखा हुआ है if not paid without due date it will be allowed a reduction in the year in which it is paid। वहां तो ऑलरेडी लॉ वही है कि ड्यू डेट तक, अगर ड्यू डेट तक नहीं पे किया तो जिस साल पे करेंगे वो अलाउ कर देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। 43B is not changed। What if firm distributes stock in trade to partner on retirement? Also, स्टॉक इन, treatment ends. सर स्टॉक इन ट्रेड में ALA और शक्ति ट्रेडिंग लगता है, ALA और शक्ति ट्रेडिंग का केस लगता है। अगर वो पार्टनर ने आगे जाके बिजनेस नहीं करना तो मार्केट वैल्यू पे देना पड़ेगा, अगर वो पार्टनर आगे उसी को बिजनेस कर रहा है तो कॉस्ट है। इसमें तो जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट भी है, इसमें तो जीएसटी की भी इन्वॉल्वमेंट है, आपको समझ में आया? तो वो स्टॉक इन ट्रेड लगता है, वो स्टॉक इन ट्रेड के लिए ALA फर्म और शक्ति ट्रेडिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। चलिए If आगे। in case of retirement only capital balance is returned to retiring partner, then also market value is to be calculated. अगर एसेट दिया तो मार्केट वैल्यू, एसेट दिया तो मार्केट वैल्यू लेनी, बस। In case of dissolution of firm, one of the partner is keeping all the assets and liabilities of the firm and returning the capital balance of other partners, then also market value is to be same. If the asset is given, otherwise money is given to the extent of the capital without valuation, without revaluation। मनी दी है तो कोई बात नहीं, एसेट भी दी है तो उसकी मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे आपने उसको शेयर दे दिया, लैंड दे दी, बिल्डिंग दे दी, वो तो बड़े होगा। अरे मशीनरी फर्नीचर में तो वैसे ही मार्केट वैल्यू ज्यादा होती नहीं है, इन्हीं चीजों में तो मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू लेके कैपिटल गेन टैक्स किसको देना है? फर्म को देना है, फर्म को देना है, उसको नहीं देना। चलिए आगे। And delayed payment of PF/ESI be claimed as a deduction under 37. किसने कह दिया? वो 36(1) ये स्पेसिफिक सेक्शन है, 37 तब लगता है when 30 to 36 नहीं लगता। सर ये तरह पढ़ लो ना यार, 37 is applicable when it is no deduction is not allowed under 30 to 36। ये तो 36 में कवर्ड है, तो 37 लग ही नहीं सकता। चलिए। If employee has not filed his income tax return for last 2 years, then how much tax is to be deducted from his salary? बताया ट्वाइस द रेट, लेकिन ईच ईयर 50,000 का TDS होना चाहिए ईच ईयर का। ट्वाइस द रेट एप्लीकेबल, अगर वो रेट ट्वाइस में 5% से कम है तो 5%। In section 206AB, the higher TDS would be applicable only in case of where I have deducted TDS of vendor of past 2 years in excess of 50,000 and the vendor has not filed income tax return, or total TDS deducted by anyone in the last year to 50,000. नहीं, उस एसएससी का जिसने 2 साल की रिटर्न नहीं भरी है, उस एसएससी का जिसने 2 साल की रिटर्न नहीं भरी है और 50,000 पर ईयर का TDS या TCS है, उसका ट्वाइस रेट है। और मैंने आपको बताया
बड़ा सिंपल वे है, यूटिलिटी में डाल देगा, पैन नंबर पता लग जाएगा, डबल कर देना, नहीं तो नॉर्मल। Does capital gain arise in case of redomiciliation of holding company, that is holding company changing location from one country to other country? Locations from country to the another country. ये कौन सी कंट्री है यार? इंडियन कंपनी को लोकेट करोगे तो उसका वो तो हमेशा ही रेजिडेंट होती है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ए रेजिडेंट। इंडियन कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो आप उसको रीलोकेट करोगे, कहीं भी कर लो, इट इज रेजिडेंट। Section It is resident. 50C and 56(2) is not applicable to rural agricultural land as it is not capital. Is there an amendment to this section? सर एक चीज आपको बता दूं, रूरल एग्रीकल्चर एंड 50C नहीं लगता, 56 210 में प्रॉब्लम है, वहां लिखा है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। हालांकि वहां जाके कुछ और लिखा है, तो उस वक्त उसमें डिस्प्यूट है कि वहां रूरल एग्रीकल्चर लैंड ले लेंगे, लेकिन कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, वो तो वैसे का वैसे ही है। Any amendment for timely filing of ITR so that chapter 6A deduction will be allowed? Please. वो तो पहले से ही है Please. कि भाई 80IA से लेकर वो डिडक्शन नहीं मिलती अगर ड्यू डेट तक नहीं भरेंगे, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है सेक्शन में। You will not get deduction under 80IA onwards unless you file the return before the due date. You are not allowed to carry forward the losses also. 80C वगैरह के लिए नहीं है, 80C तो ड्यू डेट के बाद भी भर सकते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80C to 80GC में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80IA onwards you don't get the deduction unless the return is filed on or before the due date. If section 206C(1)(h) applies, only then 194Q not applicable. Yes, 194Q will be given preference. 206C(1)(h) only when 194Q is not applicable. वो तो मैंने बताया था आपको। अगर दोनों में 10 करोड़ है तो भी क्या लगेगा? 194Q. Sir, in case of affordable housing, there is MAT applicable. So whether it will be beneficial for development of सर मैट एप्लीकेबल अब कहाँ है? आप बेकार की बातें करते हैं। अगर हाँ, अगर डिडक्शन लेना है तो मैट है, अगर टैक्स पूरा देना है तो फिर मैट तो है ही नहीं ना। आपको अगर उसमें जाना है 22% वाली में तो मैट नहीं है। हाँ, अगर आपको 30 या 25 में रहना है तो मैट है, वो तो रहेगा, और वो तो क्रेडिट आपको मिल ही जाएगा बाद में। मैट और अदरवाइज तो मैट खत्म हो गया ना जब 22% में जाना है तो। पर इसको तो डिडक्शन लेना है ना 80IB में, इसको तो 25 और 30 में ही रहना पड़ेगा। इसको तो डिडक्शन लेना है तो वहीं रहना पड़ेगा और मैट देना ही पड़ेगा। And then about affordable rental scheme, you said it is applicable to builder, but question is that if anybody purchase from the builder and give for affordable rental, then where the exemption available? सर आपको रूल्स तो आने दीजिए तब पता लगेगा, अभी तो लॉ बना है। अरे आप बनने उसको पता करने दीजिए क्या क्या रूल्स उसके आने हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। उसके रूल्स भी आएंगे, कितना भी एरिया होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इंतजार कर लीजिए ना, इन रूल आने तो फिर देखेंगे रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या चीज है। अभी तक तो उन्होंने हल्का सा बताया है, रूल्स में भी बताया। चलिए। Okay, many other questions are in the same format. Our Secretary Kashinath Patar has just joined. Kashinath, will you please give a formal vote of thanks? Kashinath? Am I audible, Kashinath? Amruta, can you please take the vote of thanks? Sure, it's always a pleasure. How can we really thank you enough, sir? And thanks for motivating all of us to stay updated and attend more and more such sessions. But we look forward for your sessions also. We've all studied together, given the exams together, and now after clearing also getting sessions and insights from you really means a lot to all of us on a Saturday early morning. Thank you on behalf of all the organizers. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Take care. Stay healthy. I have another program. Give me 5-minute break. Let me have a cup of coffee and start that. Thank you. All the best. Take care. Take care. Good day, sir. Thank you. Thank you. Good day. Good day.